All right. Okay, so it's a big bold no basically. All right. देखते हैं आप लोगों ने पोल में क्या जवाब दिए हैं. 50% of you, let me end the poll. Only 64% of you are not, if you are not going to participate, आप इस सेशन से भी नहीं गेन कर पाओगे. आप जनरली जो हम आपको सोल्यूशन देना चाह रहे हैं उससे भी नहीं गेन कर पाओगे. इज द लैंग्वेज ओके फॉर यू? हिंदी, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. इज somebody having a problem with the language? Okay, so many of you have said, मैं आप लोगों का पोल आपके सामने रखता हूं और ये एक्चुअल अभी की कहानी है. Half of you are looking at solution through allopathic medicines, management through allopathic medicines, which is something we have been told by our very educated, learned, capable doctors who we trust in for the right reasons. हम उन पे ट्रस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं और हम अपनी सिचुएशन को मैनेज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. बट हाँ, वी आर स्ट्रगलिंग. दैट इज व्हाई वी आर लुकिंग एट सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन स्टिल. Right? So we would also be, by the way, live on Facebook. So in case you are having any audio trouble, you can join us on Facebook as well. अब अगला सवाल ये आ जाता है, तो इसके बारे में किया क्या जाए, और जो सेंट्रल पार्ट, प्रोसेसिंग के पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो व्हाट द हेल इज दिस प्रोसेसिंग पार्ट ऑल अबाउट? नाउ अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू रिलेट विद यू is I'm throwing another poll. I'm trying to check कि आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हो भी इस वेबिनार में, सोए हुए हो. टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज. एक और सवाल आया था, उसका जवाब देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो सवाल आया था टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में फर्क क्या है. मेक दिस शॉर्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस. टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड रहती है अधिकतर, ऑलमोस्ट ऑलवेज, वेयर योर बीटा सेल्स आर गेटिंग अटैक्ड एंड दे आर गेटिंग किल्ड, जहां से इंसुलिन बनती है. So you are dependent on insulin, otherwise you would die, because the body needs to have insulin to remain alive. तो वो बहुत जरूरी है. तो इंसुलिन डिपेंडेंसी आपकी मैंडेटरी है, और मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि आप अगर इंसुलिन सही समय पे नहीं लोगे तो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाओगे, and you would have to, I mean, it would be a drastic situation. You might even have to go to an ICU and it would be very troublesome. तो बहुत पेनफुल पीरियड होता है. रिलेटिवली इंसुलिन रेजिस्टेंस इज टाइप 2, जिसमें इंसुलिन की कैपेसिटी आपकी कम हो गई है. सो इंसुलिन को जितनी एफिकेसी से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है. So insulin could be there or would be there, or maybe it is there at a lower level or higher level, etc., but its capability has reduced. Those are certain reasons. Those are hormonal imbalances which can be identified and which can also be corrected. Now if we are looking at it from a different perspective, how do we understand and what do we do, and what kind of benefit we have been able to provide to people? जो लोगों को बेनिफिट मिला है कुंभक थेरेपी के थ्रू, उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते सुनते समझते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम पीपल हाउ दे हैव बीन एबल टू गेट बेनिफिटेड. मैं एक छोटा सा आप लोगों के सामने वीडियो प्ले कर रहा हूं. प्लीज लिसन इन. Namaste. My name is Ritesh Shirolkar. I did this Kumbhak therapy in the month of August 29th, rather. I did the course. And after that, it's been 2 months since I am doing the practice of Kumbhak regularly. I've completed 2 months of the practice, and it gives me immense pleasure to say that I have benefited a lot by practicing this Kumbhak therapy. I did my blood test after doing 2 months of Kumbhak practice, and not only that, I feel very energetic and very relieved in terms of. It starts for me. I said, "Oh my God! It's not just about reversal. It's about the whole life as to how to lead it, how to look up at things which we never did before." And I was thrilled. And that is when I started recording my sugar, and I was zapped that my sugars were absolutely in control.
and you won't believe I am totally in control of what I want to eat. वो होता ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती। मेरे सामने आप मिठाइयाँ रखे, चिकन रखे या कोई भी, वो इच्छा ही नहीं होती और वो ठीक होता गया। And I am totally in a blissful state now. I feel कि I can conquer many things. I was so fearful, doubtful, thoughts were racy. हमेशा थॉट्स आते थे, ये होगा क्या, वो होगा क्या, ये सही है क्या, डर होता था। अब सब ठीक लग रहा है, सब स्मूथ लग रहा है। Since last 15 years, I am suffering from this. Even it has reached 411. The doctors advised me to go for what I meant to say, this insulin. Then I joined Kumbhak. You believe me? I think from 15 to 24, within 10 days. Diagnostic center, he came in early also. He used to come. He came with the reports. Sir, आपका शुगर लेवल इतना कम हो गया. He said, साहब आपके लिए खुशखबरी है. मतलब बोलिए क्या है? सर आपका शुगर लेवल एकदम कम हो गया। मैं सोचा कितना है? It's 165 and 240. I was shocked. When I was कल राजेश जी बोल रहे थे कि you disturb us for questions and etc. पीछे पढ़ो। मैं सोचा सर एक क्वेश्चन जस्ट टाइप करके WhatsApp में डालने से within fraction of seconds we are getting answer, and how the patients there, I don't know. टीम में ज्वाइन किया और उस पर उन्होंने जो कुंभक की प्रैक्टिस बताई है, उसमें मैं सुबह शाम कर जा रहा हूँ। उसकी वजह से मेरी शुगर बहुत ही कंट्रोल में आ गई है। जो पुराने जब मैंने शुरू किए थे वो मुझे 4 टैबलेट थे, अभी मैं प्रैक्टिस के मेरी शुगर कंट्रोल आ गई है और मैं 1 टैबलेट और वो भी अल्टरनेट डे पे आ गया हूँ। The way it is being told to us in the Kumbhak exercise and all of the exercises, it is very relieving. Relieving means that you feel your sleep is good, your motion in the morning is very good, your gastric problems are not there, and once all these problems are there, your digestion will be good. Once your digestion will be good, your gastric problem will reduce slowly. It will take minimum 3 months for a person like me to have a good feel. तो ये कुंभक प्रैक्टिस मैं रियली जब से सीखा हूँ तब से एक भी दिन, नॉट अ सिंगल डे मैंने गैप लिया नहीं है या पिया नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। तो मैंने रोज ये करते गया और कर रहा हूँ। और इंटरेस्टिंगली में सरप्राइजिंगली जैसे ही मैंने किया तो मुझे इसका रिजल्ट, मैं 3 हफ्ते के बाद ही मैंने जब भी मेरा ब्लड शुगर किया तो एब्सोल्यूट नॉर्मल लेवल पे आया था, एब्सोल्यूट नॉर्मल। I started to practice now since, more or less 3 months. My diabetes is normal, my values are normal, and since over 10 days, I'm not taking medicine anymore. So with these levels, I'm also accompanying it with some diet regulation. At the moment, I'm doing a cleansing, and my values are really this morning at 104. This is very low. But what is most efficient is, since I practice that, my vitality has increased tremendously, and I feel really committed to this practice, which I'm doing vigorously. First of all, I am very much thankful to Vinodji. और भी है वैसे तो काफी सारे इस तरह के लोग हैं, तकरीबन 1600 बंदों ने, there are about more than actually 1600 people who have joined more than 40 batches of Kumbhak therapy. So आप उन लकी लोगों में से हो जिन्होंने सुना नहीं है और अचानक you have stumbled upon something, but many of those people, almost all of them people, जो भी disciplined रहता है, they have been able to come out of their diabetic condition. All of them, all 1600 of them. अब ये क्यों आपने, और अच्छा खासा नंबर भी है. This is basically, by the way, this is one of the top 5 programs in the country, diabetes के program में, and it is definitely by a very long distance the cheapest program in the country. So that is there. But ये कैसे काम करता है? And this is so because it's very simple. It's extremely simple. अपने बॉडी को समझ के अपनी बॉडी के साथ ही हमें इम्प्रूवमेंट का काम करना है. Now how does that happen? I would like to welcome Swami Raj Vibhu, who has spent his entire life in understanding how human mechanics work, how
we can work with our body internally and individually and help it come out of its conditions. उन सारी चीजों के बारे में स्वामी जी ने काफी समय बिताया है. He has dedicated his entire life for the past 15-20 years. He has been working and sharpening how individuals can be improved, not just in diabetes, but also in cancer, thyroid, many other problems, many other chronic conditions, and even terminal diseases. So I'm very proud to share this time with him, and would like Swamiji to please take over and share his inputs with us. Sir, you are there? Yes. Am I audible? आवाज आ रही है? Yes, sir. So you will have to pay a little attention. थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा, because I mean telling you something very new. आपको कुछ नई चीज बताना चाहता हूँ. नया नहीं है. You'll be able to correlate. We'll do experiments. हम कुछ अपने ऊपर काम करके भी देखेंगे, so that you can understand it well. समझ सकें इसको ठीक से. ऐसा हम experiment भी करेंगे. But at this point of time, इस वक्त में diabetes का मतलब होता है, diabetes means some kind of sugar level, है ना? Sugar level is not diabetes, because sugar level increases due to many reasons. अलग अलग कारण से sugar level fluctuate करता है. किसी का भी sugar level same रहता है क्या? Anybody? Sugar level, does it remain same? किसका रहता है? एक मुर्दे का रहता है. जिंदा आदमी का नहीं रहेगा. So body takes care of the levels according to situation. Situation के हिसाब से ये levels fluctuate करते. But if you are having symptoms, अगर आपके अंदर डायबिटीज की वजह से कुछ परेशानियां हैं, बहुमूत्र, frequent urination, low energy, fatigue, ऊर्जा कम है, थक जाते हैं, न्यूरोपैथी, ऐसा स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, रात में जल्दी नींद नहीं आती, तो अगर ऐसी चीजें हैं, then you can see ये ही चीजें डायबिटीज. शुगर लेवल तो प्रेग्नेंट women का भी फ्लक्चुएट करता है ना. If somebody is into pregnancy, sugar goes high, isn't it? If you are into infection, अगर infection हो गया, बॉडी को ठीक करना है, तो शुगर चाहिए ना उसको. Sugar is और ग्लूकोज is an important ingredient for life. Yes or no? आपको चाहिए. चोट लग गई तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपका मालूम है. If your liver is not functioning well and the body has to repair the liver, it will have to increase the glucose level. Yes or no? आप डर जाते हैं ना. कोरोना न्यूज देख के कितने लोग डरे लास्ट 2 साल में? बहुत लोग. शुगर फ्लक्चुएट हुआ कि नहीं हुआ? In corona period, lot of people must be getting very fluctuating sugar level. Why? Because of fear. डर के मारे. If you get into some kind of fear, body increases glucose to handle it. Body glucose बढ़ाती है. The fight and flight mechanism goes up or it gets on. चालू हो जाता है आपका खतरे से निपटने का प्रोग्राम बॉडी का. So what I am saying is, क्या मैं बता क्या रहा हूं, केवल शुगर लेवल देख के आप अगर ठीक करोगे शुगर लेवल को, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. You must be taking medicine to control sugar levels, है ना? Some kind of medicine, maybe allopathic medicine, maybe natural medicine, Ayurvedic or homeopathic, ऐसा कुछ ले रहे होंगे. Even if you manage your sugar levels, are you out of your symptom? क्या symptom चलेगा? Even if you take your medicine, दवाई लेंगे, उसके बाद भी, can you guarantee that you will not get into complication later on in your life? बाद में चल के complication नहीं होगा. न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी डिसऑर्डर, लिवर डिसऑर्डर, ये सब हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर इशू, ये नहीं होगा. गारंटी दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते. Nobody can guarantee, right? तो हम कह रहे हैं कि वो आप कैसे उसकी गारंटी दे सकते हैं, वही बताने वाले. So what does it mean when you say diabetes? One is sugar level, जो अभी इस वक्त में समझते हैं. As you understand, it is sugar level. The other thing is, there is something wrong with pancreas. एक चीज पकड़ते हैं, let's start from there, है ना? एक चीज पकड़ते हैं, let's catch one thing
and understand the program समझते हैं वहां से. So your pancreas has become weak. पैनक्रियास कुछ है, किसी ने देखा नहीं है, आपने कहीं पिक्चर देखी होगी, असलियत में नहीं देखा, बट इतना नाम तो सुना हुआ है. यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, पैनक्रियास. तो पैनक्रियास हैज बिकम वीक. एक सिंपल डेफिनेशन लेके चलें, समझ में आएगा. यस और नो? पैनक्रियास हैज बिकम वीक. इट इज नॉट एबल टू रिलीज प्रॉपर इंसुलिन. इंसुलिन नहीं निकाल पा रहा वो. एक चीज लेके चलते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू दिस. इसे समझते हैं. समथिंग हैज गॉन वीक. एक ऑर्गन वीक हो गया. टेल मी, आप मुझे बताएं कितने लोग पैनक्रियास को स्ट्रांग करने का काम कर रहे हैं रोज रोज, और आर यू डूइंग एनीथिंग टू स्ट्रेंथन योर पैनक्रियास? पैनक्रियास को स्ट्रांग करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं? कुछ भी कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे. एंड यू आर ड्रीमिंग दैट यू कम आउट ऑफ डायबिटीज, और आप ड्रीम कर रहे हैं कि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए. तो सपना देखने से थोड़ी होता है डायबिटीज ठीक. You will have to work upon that. You will have to strengthen your pancreas. Now, the right question is, सही सवाल क्या है? How to strengthen the pancreas. सही सवाल पे आ गए? सही सवाल क्या करना है? How to strengthen the pancreas. Pancreas को कैसे strong किया जाए? ठीक है? So उसको समझने के लिए, to understand that, let us understand the strength creating mechanism of human body. मानव शरीर की शक्ति पैदा करने की का मैकेनिज्म का तरीका क्या होता है, इसको समझे इसको. लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट करें. सो कीप योर लेफ्ट पार्म लाइक दिस. बाएं हथेली को ऐसे रखें. मेक फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड. दाएं हाथ से मुट्ठी बांधो. सभी करेंगे. देखो, नहीं करोगे तो फिर कैसे सोल्यूशन कैसे मिलेगा? ओके, यू डोंट ज्वाइन द प्रोग्राम, बट एटलीस्ट यू गेट इट क्लियर इन योर हेड. दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए. तो बाएं हथेली को ऐसे रखो. दाएं हाथ को मुट्ठी बांधना. मेक फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, है ना. अपनी बाएं हथेली के पास में लेके आना और पुश करना है. जोर लगाना है, धक्का देना है, जितना जोर से धक्का दे सकते हैं. पुश इट हार्ड. ये आप स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहे हैं ना, आप शक्ति पैदा कर रहे हैं ना, है ना. एफर्ट लगाने की शक्ति पैदा कर रहे हैं ना. हाउ आर यू डूइंग इट? ये स्ट्रेंथ कैसे पैदा कर रहे हैं? ये एफर्ट कैसे पैदा कर रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही होंगी. मसल्स, बोन्स, नर्वस सिस्टम, माइंड, दिस दैट, ऐसा कुछ आ रहा हो, दिमाग में आ रहा हो. हाँ, नहीं, यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन. ये आपका ट्रेनिंग बोल रहा है, एजुकेशन बोल रहा है. जैसे आप ट्रेन हुए हो ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ाई लिखाई किया ना, वो बता रहा है आपको. नहीं, विल डू इट सेकेंड टाइम, दोबारा से करेंगे. And now wherever I am indicating, just look there. जहां बता रहा हूं वहां देखना. हाँ, फिर से करेंगे. इस बार पूरी तरीके से जोर लगाइए. पुश इट हार्ड. देखिए, जितना जोर लगाना चाहते हैं, the more you want to push, the more you have to hold your breath. उतनी सांस रोकनी पड़ती है आपको. करके देखिए. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. देखिए, सांस रोकनी पड़ती. हाँ या ना? यस और नो? एक स्टेप पे चलेंगे, अग्री करते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है? अभी तक आपने देखा नहीं था इसको. यू हैवंट सीन दिस टिल नाउ. अच्छा, खींचते कैसे? हाउ डू यू पुल पीपल? कभी रस्सा कस्सी खेली किसी ने? टग ऑफ वॉर खेला? खींचते कैसे? हाउ डू यू पुल? तो एक काम करते हैं, क्लास्प योर फिंगर्स. उंगलियों को फंसा लें ऐसे और खींचे. जस्ट पुल हार्ड. सी यू होल्ड योर ब्रेथ. सांस रोक लेते. हाँ या ना? You hold your breath. Without holding your breath, you can't push, you can't pull. ना धक्का दे सकते, ना खींच सकते. ओके, so चेयर से उठते हैं तो क्या होता है? Even if you get up from a chair, what happens? You make a sound. आवाज करते हैं ना. What did you do? क्या किया? सांस रोक ली. सुबह उठते हैं, मॉर्निंग यू गेट अप and yawn and tense your body. अंगड़ाई लेते हैं. कैसे लेते हैं? करिए शरीर को टाइट थोड़ा. सांस रोकनी पड़ती है. सांस रोक के करते हैं कि नहीं करते? करते हैं. सो मैं क्या बता रहा हूं आपको, वॉट एवर यू डू थ्रू आउट द डे,
पूरे दिन में कुछ भी करो आप, सुबह उठ के वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, हाउस होल्ड वर्क, सीढ़ियां चढ़नी है, घर के कामकाज करने, शरीर से जब भी हम काम लेते हैं, देयर इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड विच गोस बिहाइंड। अलग अलग अनुपात में पीछे सांस रुकती है, आप इसे नोटिस भी नहीं करते, राइट? सो सांस रोक के आप स्ट्रेंथ पैदा करते हो। You create strength by holding your breath, or the body creates strength by holding breath. अब आगे, कितने लोगों ने अपना राइट हैंड स्ट्रांग है? कितने लोगों का राइट हैंड स्ट्रांग? लिफ्ट योर राइट हैंड। कितने लोगों का लेफ्ट हैंड स्ट्रांग है? हाउ मेनी पीपल हैव लेफ्ट हैंड स्ट्रांग? लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड। हाउ डिड यू डू इट? कैसे किया आपने? एक हाथ को ज्यादा मजबूत कर दिया दूसरे से? यस और नो? एक को ज्यादा किया ना मजबूत। व्हेन यू वर बॉर्न, जब आप पैदा हुए थे, दिस वाज नॉट द केस, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यू डिड इट, आपने किया। हाउ डिड यू डू इट? कैसे किया? सो अपना जो भी स्ट्रॉन्ग हैंड है वो उठाइए, राइट और लेफ्ट विचएवर, मजबूत हाथ उठाइए, जरा टाइट कर लो उसको, जोर से टाइट करो, दूसरा लूज रहेगा, जोर से टाइट करो। हाउ यू टेंसिंग इट? बाय होल्डिंग द ब्रेथ एंड गिविंग इट अ डायरेक्शन टुवर्ड्स दैट हैंड। Hold and it goes, the direction goes towards that hand. Breath hold and direction. दूसरा तो लूज है ना, ब्रेथ होल्ड का डायरेक्शन कहां गया? Towards one hand. एक और एग्जांपल देता हूं टू मेक इट क्लियर, इसको समझने के लिए। यू नो पीपल गो टू जिम एंड बिल्ड मसल, लोग जिम जाते हैं, मसल्स बना लेते हैं, ये आप जानते हैं ना? पीपल गो टू जिम एंड बिल्ड मसल, ये आप जानते हैं, यू नो दिस। हाउ डू दे बिल्ड मसल? कैसे मसल बनाते हैं? How do they build muscle? By lifting weight. वेट उठाते हैं ना, वेट एक्सरसाइज, वेट उठाते हैं। सपोज यू गो टू जिम, आप जिम में जाएं एंड लिफ्ट वेट फ्रॉम योर वन हैंड, राइट हैंड, एग्जांपल राइट हैंड, राइट हैंड से वेट उठाइए, आपका राइट हैंड का मसल बिल्ड हो जाएगा। बट हाउ विल यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे उठाएंगे? हाउ विल यू लिफ्ट वेट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ। यस और नो? होल्डिंग योर ब्रेथ। वेट उठाने का तरीका क्या? आपको सांस रोकनी पड़े, and you will also use the muscles of right hand. ये दो चीज इस्तेमाल करेंगे ना, breath hold and muscles। तो breath hold का डायरेक्शन कहां जाएगा? Where will the direction of breath hold go? Towards right hand muscles, and right hand muscles will build up. So when you worked with that hand, जब उस हाथ से आपने काम ज्यादा किया, whichever hand is strong, जो भी हाथ आपका strong है, उससे आपने ज्यादा काम किया। So what happened? How did you work? कैसे काम किया? Breath hold and direction, breath hold and direction। फॉर्मूला मिल गया? फॉर्मूला मिल गया आपको? Now what is the right question here? यहां पे सही सवाल क्या है? बट पैनक्रियास तो हम कंट्रोल नहीं करते। What is the right question? Okay, hand we can control, हाथ तो वॉलंटरी एक्शन में आता है ना, वॉलंटरी बॉडी, बट पैनक्रियास का काम तो हम नहीं करते। How to strengthen the pancreas? Now the most important part of this webinar, सबसे important part इस webinar का, ध्यान दीजिए, बाकी इधर उधर घूम रहे हैं तो इस वक्त में रुक के ध्यान दीजिए। अगर आप सांस रोक लें and do not move your body at all, सांस रोक के आप अपने शरीर को हिला ही नहीं, what happens? What will happen? होगा क्या? Your heart rate will increase, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, यू स्टार्ट स्वेटिंग, गर्मी आ जाएगी, शरीर के अंदर गर्म होने लग जाएगा, योर मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज। गर्म होगा, क्या हुआ? पसीना कैसा आया? मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज। डायरेक्शन कहां गया ब्रेथ होल्ड का? वेयर डिड द डायरेक्शन गो? बाहर तो नहीं गया, द डायरेक्शन डिडंट गो आउटसाइड, इट वेंट इनसाइड, अंदर चला गया, towards the heart, towards the metabolism. So मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, can you direct the breath hold towards your pancreas and make it strong? You don't know how to do that, but that is the only way. और कोई तरीका नहीं है। एक्सरसाइज करते हैं तो डायरेक्शन कहां होता है ब्रेथ होल्ड का? बाहर होता है ना, बॉडी पे। That is why exercise cannot cure diabetes. स्पोर्ट्स के लोगों को होता है डायबिटीज, यस और नो? स्पोर्ट्स वाले लोगों को होता है ना डायबिटीज,
क्यों? क्योंकि ब्रेथ होल्ड का डायरेक्शन कहां जा रहा है एक्सरसाइज में? आउटसाइड, नॉट टुवर्ड्स पैनक्रियास. You can only correct your diabetes by directing the breath hold towards pancreas and make it strong. There is no other way. कोई खाना खाने से पैनक्रियास स्ट्रांग हुआ आज तक किसी का? हार्ट स्ट्रांग हो गया? लिवर स्ट्रांग हो गया? नहीं. फूड से नहीं होगा, एक्सरसाइज से नहीं होगा. So this is Kumbhak therapy. When you direct your breath hold towards your pancreas and make it strong, this is Kumbhak therapy. Now I have just talked about part 1. एक part 1 बताया आपको, थोड़ा सा और आगे बताएंगे. We'll tell you a little more. तो प्रोग्राम में हम यही करवाते हैं, ठीक है? पैनक्रियास को स्ट्रांग करना, वो स्ट्रांग होगा तभी आप डायबिटीज से निकलेंगे. बाकी सब सपने हैं. Everything else is a dream. You might enjoy the dream, nothing harm in it. Food is supportive, आपको हेल्प करेगा, nothing bad about it. Exercise is good, nothing bad about it. But still a dream. डायबिटीज नहीं ठीक होगी बॉस. आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड. तो आप लोग अभी थोड़ा समझदार होने लग गए ना. पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट. देखो आप लोग बहुत समझदार हो. ओनली थिंग इज यू आर लुकिंग समवेयर एल्स. देख कहीं और रहे हैं, और कुछ नहीं है ना. आप लोग बहुत समझदार हो. तो पर आंखें खोल के अगर आप देखोगे ना तो you'll be able to see. आप देख पाएंगे सही. और इंडियन लोग तो, इंडियन पीपल आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट. थोड़ा सा गुलामी वाला ना, वो अभी हैंगओवर है, थोड़ा हैंगओवर है, बस और कुछ. आंखें खोलेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा. तो टेल मी, हु डिजाइंड योर बॉडी? विच डॉक्टर, विच साइंटिस्ट डिजाइंड योर बॉडी? इन्वॉल्वमेंट होना है, थोड़ा इन्वॉल्व करना है. लिखिए चैट बॉक्स में, नीचे चैट बॉक्स है, राइट इट डाउन, वॉट एवर यू थिंक. आपको किसने डिजाइन किया था? कौन से डॉक्टर ने डिजाइन किया? कौन से लैब में डिजाइन हुए हो आप? ब्रांड क्या आपका? व्हाट इज योर ब्रांड? आप जो समझते हैं, व्हाट एवर यू थिंक, टाइप डाउन इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में डालें. किसने बनाया आपको? हु डिजाइंड यू? आपका डिजाइन किसने किया था? अगर उस डॉक्टर का नाम मालूम है तो वो भी डाल दीजिए. साइंटिस्ट का नाम मालूम है तो वो भी डाल दीजिए. बट whosoever designed it, just type it down. देखते हैं. ओके, मोस्ट पीपल आर सेइंग गॉड. ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं? गॉड. अब ये पता नहीं गॉड क्या है. किसने चाय पिलाया गॉड को घर में? हाथ उठाएं. किसने चाय पिलाया? फोन नंबर, एड्रेस कुछ मालूम? नहीं मालूम. आपको ट्रेनिंग ऐसा दिया गया ना, देयर इज सम गॉड हु, ऐसा ट्रेनिंग दिया ना आपको, तो आपने भी मान लिया. यस, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आज प्रूव करके जाऊंगा. आई विल प्रूव इट टुडे दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट देन यू थिंक. आज मैं ये प्रूव करके जाऊंगा कि आप ज्यादा समझदार हैं. जितना समझते हैं उससे ज्यादा समझदार. सभी जानते हैं हु डिजाइन्ड इट. एवरीबडी नोज हु डिजाइन्ड. यू आर नॉट लुकिंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट्स इट. तो प्रूव करते हैं. इफ देयर इज एन अफ्रीकन, इफ यू सी एन अफ्रीकन, एक अफ्रीकन बंदे को आप देख लेते हैं, देखते ही आपको पता चल जाता है ना अफ्रीकन है. द मोमेंट यू सी, व्हाट यू से? देखते ही क्या बोलते हैं? ओ अफ्रीकन, ऐसे बोलते हैं ना. चाइनीज, ओ ये तो नॉर्थ ईस्ट के लग रहे हैं. अच्छा, आप क्या साउथ इंडियन हैं? द मोमेंट यू सी अ पर्सन, जस्ट लुकिंग एट द बॉडी, यू नो हु डिजाइन द बॉडी. शरीर को देखते ही आप जानते हैं कि किसने डिजाइन किया उसके शरीर को. जब आपने अफ्रीकन बोला, व्हेन यू सेड अफ्रीकन, हु डिजाइन द बॉडी? अफ्रीका. व्हेन यू सेड चाइनीज, हु डिजाइन द बॉडी? चाइना. नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, आप देखते ही बता देते हैं ना. द मोमेंट यू सी अ पर्सन, यू गेट एन आइडिया वेयर डज द पर्सन बिलोंग टू. सो व्हाट इज अफ्रीका? अफ्रीका क्या है? इट्स एन एनवायरमेंट, एक तरीके का वातावरण है. हाँ या ना? आपको जुड़े रहना पड़ेगा थोड़ा, फिर समझ में आएगा. वातावरण है ना. अफ्रीका इज अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट, अ टाइप ऑफ एनवायरमेंट, है ना. सो एनवायरमेंट डिजाइन्स ह्यूमन बॉडी. यस और नो? अभी वो ना गलत ट्रेनिंग जो हुआ है उसको भी साइड में रखते हैं. हाँ, लेट्स गेट इट वेरी वेरी क्लियर. सीधा सीधी बात करते हैं, है ना. सीधी सच्ची बात जिसे कहते हैं. सो एनवायरमेंट डिजाइन्स ह्यूमन बॉडी.
एक वातावरण मानव शरीर को डिजाइन करता है। सो व्हाट इज दिस डिजाइन टू डिजाइन समझे अपनी बॉडी का, थोड़ा समझ में आएगा डिजाइन तो अच्छा रहेगा ना, विल बी एबल टू यूज इट बेटर, अच्छे से इस्तेमाल करें। सो दिस योर बॉडी इज डिजाइन फॉर नेचुरल फूड, द फूड विच ग्रोज इन नेचर, प्रकृति में जो पैदा होता है उसके लिए डिजाइन है। व्हाट डू यू ईट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं? कुक्ड, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, पैकेज फूड, ऑल्टर्ड फूड खा रहे हैं ना, बदला हुआ भोजन कर रहे हैं, ऑल्टर्ड फूड। दूसरा, योर बॉडी इज डिजाइन फॉर नेचुरल सराउंडिंग, प्राकृतिक वातावरण के लिए आपका शरीर डिजाइंड है। तो अभी वातावरण कैसा हो गया पिछले 50 सालों में, इन द लास्ट 50 years इट हैज चेंज्ड बाय 80%, 80% बदल गया। 80% of plants and animal species are extinct from the face of earth. पृथ्वी से 80% जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। Everything got polluted, air pollution, water pollution, noise pollution, land pollution, this pollution, that pollution, क्या क्या pollution। पानी कहां गया? आपके पांव के नीचे पानी कहां है? From 50 feet to 5,000, 10,000 feet down। बदला हुआ वातावरण है ना, altered environment। ठीक है। थर्ड थिंग, अब आप लोग समझदार हो, आप अपनी समझ का इस्तेमाल करें, एजुकेशन का इस्तेमाल ना करें, समझ का, विजडम का इस्तेमाल करें। मुझे बताएं, टेल मी, वाज योर बॉडी डिजाइन्ड फॉर केमिकल मेडिसिन? क्या आपका शरीर केमिकल मेडिसिन के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं हुआ था ना। सो इफ यू हैव अ पेट्रोल व्हीकल एट होम, घर में एक पेट्रोल गाड़ी है, डीजल डालेंगे क्या उसमें? डीजल डालेंगे, केरोसिन डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। कॉमन सेंस, द इंजन इज नॉट डिजाइन्ड फॉर डीजल और केरोसिन, वो पेट्रोल के लिए डिजाइन है, पेट्रोल डालेंगे। जब ये शरीर इस्तेमाल करते हैं, व्हेन यू यूज दिस बॉडी, ये कॉमन सेंस कहां चले जाता है? वेयर डज दिस कॉमन सेंस गो? व्हेन यू आर नॉट डिजाइन्ड फॉर मेडिसिन, केमिकल मेडिसिन आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर उसके लिए आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ है तो आप मेडिसिन इसमें डालेंगे तो और खराब होगा, ठीक होगा, और खराब होगा ना। अब मुझे बताइए, टेल मी, पिछले 50 सालों में डायबिटीज, मेडिसिन बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ा या कम हुआ? डायबिटीज हैज इंक्रीज ना, मेडिसिन हैव इंक्रीज, डायबिटीज इंक्रीज। अच्छा, दूसरी चीज लेते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ा कम हुआ? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। ओके, कुछ और लेते हैं, कैंसर बढ़ गया कम हो गया? कैंसर इंक्रीज इन द प्लान ऑन द प्लैनेट और डिक्रीज? 12% रेट ऑफ इंक्रीज। एपिडेमिक बनने वाला आपको मालूम है? अच्छा, और कुछ लें, टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन बढ़ा कम हुआ? ऑस्टियोपोरोसिस, मेंटल डिसऑर्डर, छोड़ो मेंटल डिसऑर्डर, माइंड से रिलेटेड डिजीज कम हुआ बढ़ा? बढ़ गया। अच्छा, प्रेगनेंसी इश्यूज बाकी छोड़ो, वो भी छोड़ो, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी कम हुआ, इनफर्टिलिटी बढ़ गया। बच्चों में 4-4 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं आजकल। डू यू नो दिस? मोर मेडिसिन, मोर डिजीज। ये आपको तो आंखें खोलना पड़ेगा, तो आपको तो कैसे भी ट्रेन कर देते ना, आप तो कैसे भी ट्रेन हो जाते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड पीते हो, फिर ऑक्सीजन खाते हो, पीते हो, कुछ भी करते हो। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार, आखिरी पार्ट ऑफ वेबिनार का, हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो, लेट्स बिकम अ लिटिल मोर स्पेसिफिक, कुंभक थेरेपी के बारे में और स्पेसिफिक हो रहा है। सो द क्वेश्चन वाज, ये क्वेश्चन था कि आई एम नॉट डूइंग माई पैनक्रियास फंक्शन, मैं तो पैनक्रियास फंक्शन नहीं कर रहा, नहीं कर रही, तो कौन कर रहा है? हु इज डूइंग दोज फंक्शंस, कौन कर रहा है? इसको समझते हैं। हाँ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक एग्जांपल लेके चलेंगे, आई विल टेक वन एग्जांपल एंड मूव फॉरवर्ड। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सबने पढ़ाई लिखाई की है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेविटी। ग्रेविटी होता है ना, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, आपको नीचे खींच रहा है ना ग्रेविटी, सब जानते हैं इस बात को, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है ना। देखो, डायबिटीज का एक और सिचुएशन, प्लीज कम टू द पॉइंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ओनली। पॉइंट से अलग गया हूं? मुझे बताओ, एक भी बताओ, प्रूव करो मैं पॉइंट से अलग गया हूं। आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन करेक्ट योर डायबिटीज। एक भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं बोला विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट।
बट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज, माइंड डजंट रिमेन अंडर कंट्रोल, समझ में भी नहीं आता कुछ, है ना, वायु दोष है ना, वायु दोष में माइंड फ्लक्चुएट करता है. सो ग्रेविटी पुल्स यू डाउन, व्हाई डू यू ग्रो टॉल, आप लंबे क्यों हो जाते हैं? अगर गुरुत्वाकर्षण नीचे खींच रहा है आपको, तो लंबे क्यों हो जा रहे हैं? व्हाई यू ग्रोइंग अप, पेड़ ऐसे लंबे क्यों हो जाते हैं? व्हाई डू बर्ड्स फ्लाई, दे मस्ट बी अप्लाइंग सम फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, कोई जोर लगा रहे हैं ना गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, जोर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? तभी आप ऊपर जा रहे हो ना, तभी आप लंबे होते हो, तभी आप खड़े होते हो, चलते हो. अभी चलना भी डिफिकल्ट होता है ना, फटीग, लो एनर्जी, हिलाने का भी मूवमेंट नहीं कर रहा, मजा मन नहीं कर रहा शरीर को. सो दिस फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज उदाना. इसको क्या कहते हैं? उदाना. अब आप मुझे बताइए, आपने सुना है ये वर्ड, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, उड़ना, उड़ान, आपने सुना है ये शब्द? दिस हैज कम फ्रॉम द रूट उदाना, उदाना से आया. सपोज इट बिकम्स वीक इनसाइड यू, अगर ये कमजोर हो जाती है आपके अंदर, तो आपको कैसा फील होगा शरीर पे? हाउ विल यू फील? उठा पाएंगे अपने आप को ठीक से? नहीं, हैवी होगा, यू विल फील हैवी, हैवी फील होगा ना. अगर हैवी फील होगा, इसी को लेथार्जी कहते हैं ना, लो एनर्जी. हैवी फील होगा तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी? वेयर विल दिस हेवीनेस इंपैक्ट यू, कहां पे असर करेगा? ये जॉइंट्स में असर करेगा ना. हाउ मेनी पीपल फेसिंग लोअर बैक पेन, नी पेन, लेग पेन, स्पाइन इश्यू, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, कितने लोगों को? आर्थराइटिस. ठीक है, इफ यू फील हेवी, द जॉइंट्स विल गेट इनटू प्रॉब्लम. अगर आपका बॉडी में हेवी फील होगा, माइंड में भी हेवी फील होगा, माइंड में भी हेवी फील होगा. व्हाट डू यू कॉल दैट? इफ यू फील हेवी इन द माइंड, व्हाट डू यू कॉल दैट? क्या कहते हैं इसको? आप शब्द बड़ा इस्तेमाल करते हैं मगर मीनिंग नहीं जानते. यू कॉल इट स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस. टेंशन बाहर से होता है, किसी काम से टेंशन होता है क्या? नहीं, ये गलत सोच रहे हैं. एक सिचुएशन में 10 बंदों को डाल दो, keep 10 people in the same situation, 5 will get stress or tension, 5 will not get stress and tension. So it is your inability to handle the situation, आपकी अक्षमता किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की स्ट्रेस एंड टेंशन क्रिएट करती है. तो कैसे होगा स्ट्रेस एंड टेंशन? इफ योर उदाना इज वीक, ये अपवर्ड मूविंग फोर्स, जोर ऊपर आप ठीक से नहीं लगा, यू विल नॉट फील हैप्पी, आपको हैप्पी फीलिंग नहीं आएगी. You will not feel bubbly, you will feel heavy in the body and mind. तो आपको बिल्कुल मैंने एक्सपर्ट बना दिया, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. स्ट्रेस से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? सेब खाना है? नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा. स्ट्रेस से निकलना है तो यू विल हैव टू इंक्रीज द उदाना. जो ये फोर्स वीक हो गया आपके अंदर, उसको बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है? देयर आर 84 काइंड्स ऑफ फोर्सेस. There are 84 such forces in the body. 84 अलग अलग फोर्स होते हैं जो आपके ऑर्गन फंक्शन कराते हैं, पैनक्रियास फंक्शन करवाते हैं, लिवर, हार्ट, किडनी फंक्शन. Which force has become weak in you? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया? इसका हम डायग्नोसिस करते हैं. We find out, एनालिसिस करते हैं. हम एक डायग्नोसिस वर्ड यूज कर रहे हैं बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड, अदरवाइज इट इज बेसिकली एनालिसिस. इसका हम एक एनालिसिस या डायग्नोसिस करते हैं टू फाइंड आउट विच फोर्स हैज बिकम वीक इनसाइड, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से आपका पैनक्रियास वीक हो गया, जिसकी वजह से आप डायबिटीज, न्यूरोपैथी, ब्लड प्रेशर, किडनी डिसऑर्डर, ये सब चीजें हुई. वी फाइंड द रूट कॉज. कौन सा फोर्स वीक हो गया? By a simple online प्राण शक्ति डायग्नोसिस. We call this प्राण शक्ति डायग्नोसिस. इसको हम क्या कहते हैं? प्राण शक्ति डायग्नोसिस. This is one of its kind of a diagnosis in the whole world. पूरी दुनिया में अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस, ऐसा कुछ भी नहीं और है. So because with this online प्राण शक्ति डायग्नोसिस, हम आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ बताते हैं. There are 8 questions. 8 क्वेश्चन है. You do a little experimentation with your body, with your breath,
with your mind, with your emotion. इन सब के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप वो डालते हैं वहां पे, and we find out which force has become weak. So we design a कुंभक therapy to strengthen that force. हम आपके लिए, इंडिविजुअल के लिए कुंभक थेरेपी डिजाइन करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, to come out of that weakness, weak force, to strengthen the weak force, to rejuvenate the pancreas, to sort out other problems because of that, because of the root cause. और भी चीजें होती है ना डायबिटीज के बाद में, there are multiple things that you get into. So this is actual कुंभक therapy, प्राण शक्ति डायग्नोसिस एंड कस्टमाइजेशन. हर एक के लिए अलग कस्टमाइजेशन होता है ना, हर एक के लिए. दिस इज अ कस्टमाइज्ड. सो अभी आपको कोई मेथड बता सकते नहीं बता सकते, क्योंकि डायग्नोसिस करना पड़ेगा. वी विल हैव टू डायग्नोज, बट स्टिल आई विल गिव यू अ लिटिल टेस्टर, क्योंकि आवर माइंड वर्क्स लाइक दैट. इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट राइट टू गिव यू समथिंग, क्योंकि आप किडनी ऑपरेट कराने जाएंगे तो डॉक्टर को कहेंगे अच्छा राइट किडनी से पहले लेफ्ट करके दिखाओ, ऐसा नहीं बोलते ना. So but we will give you a little taster, थोड़ा सा एक छोटा सा टेस्टर देते हैं आपको. हाँ, now this is not yoga. पहली बात मैं आपको साफ बताता हूं, this is not yoga, this is not प्राणायाम. क्योंकि योगा प्राणायाम करने से मिलता क्या है आखिर में? कोई भी योगा की किताब उठाएं, उससे क्या मिलेगा? समाधि, मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाणा, कैवल्य, ऐसा कुछ मिलेगा. तो वो हम आपको नहीं देंगे, तो उसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा. इफ यू वांट समाधि, यू डू योगा. ठीक है, प्राणायाम, योगा ये सब करें. हम आपको हेल्थ देना चाहते हैं, सीधी सी बात. वी वांट टू गिव यू हेल्थ, वी वांट टू गिव यू अ बेटर लाइफ, वी वांट दैट यू डू नॉट गेट इनटू प्रॉब्लम लेटर ऑन इन योर लाइफ. आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आए, हम यही काम करना. तो दिस इज नॉट योगा, नॉट प्राणायाम. सीधी सी बात. दिस इज कुंभक थेरेपी, सिंपल. कुंभक इज एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म और स्ट्रेंथ क्रिएटिंग मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉडी. अभी मैंने आपको एक तरीके का कुंभक बताया, ब्रेथ होल्ड से कुंभक बताया. ब्रेथ होल्ड करके आप स्ट्रेंथ पैदा करते हैं. आई टोल्ड यू हाउ यू क्रिएट स्ट्रेंथ बाय ब्रेथ होल्ड. यू ऑल्सो क्रिएट एफर्ट व्हेन यू स्पीक. जब आप बोलते हैं तब भी एफर्ट लगाते हैं, यू आर डूइंग कुंभक. व्हेन यू आर फोकसिंग एट अ पॉइंट, यू आर डूइंग कुंभक. व्हेन यू आर लिसनिंग, जब आप सुन रहे हैं तब भी आप कुंभक कर रहे हैं. सो कुंभक कैन बी डन इन मेनी मेनी वेज, ऑन मेनी मेनी लेवल्स. So I'll make you do a process which involves two kinds of कुंभक. अभी मैं आपको एक प्रोसेस करवाऊंगा जिसमें ब्रेथ होल्ड भी है एंड साउंड भी है. साउंड कुंभक भी है, ब्रेथ कुंभक भी है, साउंड कुंभक भी है. ऐसी दो चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है. देवपाना कुंभक. व्हाट इज दिस कुंभक? देवपाना कुंभक. तो कैसे करना है इसको? फर्स्ट आई विल टेल यू द मेथड. पहले मैं आपको मेथड बताऊंगा. लिसन टू मी केयरफुली, थोड़ा मेरे आराम से सुने, उसी समय करना नहीं है. सेकेंड टाइम यू डू इट विथ माई इंस्ट्रक्शन, मेरे साथ में करेंगे. थर्ड टाइम यू कैन डू ऑन योर ओन एंड सी दैट यू आर एबल टू डू. तीसरी बार अपने आप करके देखें कि आप कर पा रहे हैं. इवन देन इफ यू डोंट गेट इट, उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आता, सो वी विल शेयर दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो पूरा रिकॉर्डिंग शेयर कर दें. You can watch this video recording any number of times. अभी our purpose is not to train you into this कुंभक. हमारा यहाँ पे पर्पस इस कुंभक को सिखाना नहीं है. It is just a little taster that we are giving, because it should be done with diagnosis. Diagnosis करके ही करना चाहिए. देवपाना कुंभक. This is called as देवपाना कुंभक. Now when you देवपाना कुंभक सुना आपने, गूगल में सर्च करने लगा है, तो कुछ नहीं मिलने वाला. लेट मी टेल यू, गूगल में कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं मिलती है ना. वी आर रिवाइविंग दिस कुंभक, सो वी विल ऑल्सो बी पुटिंग कंटेंट. ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत कंटेंट है, ऑनलाइन भी आ जाएगा, बट नॉट स्पेसिफिकली. सो कैसे करेंगे? हाउ टू डू दिस? व्हेन यू आर इन अ लिटिल लाइट स्टमक कंडीशन, जब थोड़ा पेट हल्का हो, उस समय कर. आफ्टर 3 hours आफ्टर अ मील, अच्छे से खाना खाया, भोजन किया, 3 घंटा रुके, हल्का फुल्का लिया कुछ 2 घंटे बाद कर सकते. ठीक है. सो यू कैन सिट ऑन अ चेयर, ऑन अ फ्लोर. आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं और किसी भी सरफेस, जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं. द ओनली रिक्वायरमेंट इज
डू नॉट रेस्ट योर स्पाइन। एक ही रिक्वायरमेंट है, स्पाइन टेक नहीं लगाना, बैक रेस्ट, साइड रेस्ट, ऐसा टेक नहीं लगाना, कीप इट फ्री। रीढ़ की हड्डी को फ्री छोड़ेंगे, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ ट्रिगर इनसाइड। हम अंदरूनी ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं। जहां भी आप टेक लगाएंगे वहां इकट्ठा हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट, वी वांट इट टू गो इन द राइट प्लेस। टेक नहीं लगाना बस। नाउ कैसे मेथड है, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द मेथड बता रहा हूं। सो उबासी आती है ना, द वे यू यॉन, यू इनहेल 3 टाइम्स, 3 बार इनहेल करेंगे कॉन्टिन्यूस, नो एक्सेलेशन। इनहेल होल्ड, इनहेल होल्ड, इनहेल होल्ड फ्रॉम माउथ। ऐसा 3 बार इनहेल कर ले मुंह से, मुंह बंद कर लें, क्लोज योर माउथ, बेंड योर हेड अ लिटिल डाउन, थोड़ा सिर को नीचे करें, और हवा तो ले लिया ना आपने अंदर, तो उसको नीचे की ओर धकेलना है, पुश द एयर डाउन। कैसे धकेलना है, हाउ टू डू दैट, क्या करना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉटी नहीं आती, कॉन्स्टिपेशन होता है ना, पॉटी नहीं निकल रही, तो यू क्रिएट अ प्रेशर। आप प्रेशर क्रिएट करते हो, ऐसा ही क्रिएट करना है प्रेशर, पुश इट डाउन। तो आप मुट्ठी बांध सकते हैं, मेक फेस, टेंस योर एब्डोमेन, पेट को टाइट कर लें थोड़ा, कमर को टाइट करें, पांव को टाइट करके नीचे धकेलें, हवा को नीचे धकेलें एंड होल्ड, अप्लाई प्रेशर डाउन एंड होल्ड, रोक लीजिए, 8 गिनती तक रोक लें, होल्ड इट फॉर 8 काउंट्स, 8 गिनती तक रोक लें। देन यू स्टार्ट एक्सेलिंग, एक्सेल करना शुरू करें, नाक से एक्सेल करना, फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल, नाक से एक्सेल करना शुरू, लेकिन एक्सेल करते समय साउंड निकालेंगे। कौन सा साउंड, जो जोर लगाने वाला साउंड होता है, थोड़ा जोर लगा के ये साउंड निकलता ना, हमिंग साउंड, थोड़ा प्रेशर डालते हुए 12 गिनती में एक्सेल करना है, वेरी स्लो एक्सेलेशन, 8 काउंट होल्ड, 12 काउंट एक्सेलेशन। दोबारा से बता रहा हूं, देन विल डू इट टुगेदर। 3 बारी मुंह से सांस खींचना है, रोकना है, सिर को थोड़ा नीचे करना है, क्लोज योर माउथ, पुश इट डाउन, अपना मुट्ठी बांध के पेट को टाइट करके और कमर को टाइट करके उस हवा को नीचे पुश करके 8 गिनती रुकना, होल्ड इट फॉर 8 काउंट्स, देन एक्सेल मेकिंग अ साउंड, हमिंग साउंड, एक्सेल प्रेशर वाला साउंड करते हुए 12 गिनती में एक्सेल करेंगे, 12 काउंट एक्सेल, वेरी स्लो, धीरे धीरे एक्सेल करना। शुरू करें, मेक फिस्ट, मुट्ठी बांध लो, पांव पे रखो, ओपन योर माउथ, मुंह खोलें, इनहेल फुल, पूरी सांस खींचें, होल्ड, रोकें, थोड़ा और खींचें, होल्ड, रोकें, तीसरी बार पूरा खींचें, क्लोज योर, मुंह बंद करें, सिर को थोड़ा नीचे करें, पुश इट डाउन, वो जो हवा लिया ना उसको नीचे धकेलो, होल्ड, 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड एक्सेल, एक्सेल शुरू करो, नाक से एक्सेल करना, slowly making a sound, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax, 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 बिल्कुल सांसों को नॉर्मल आने दो। तो सबसे पहली चीज क्या होगी इसमें, if you have constipation, your constipation will get relief. If you have lower back pain, कमर में दर्द है, पांव में न्यूरोपैथी है, नी पेन, घुटनों में दर्द है, वो रिलीव होगा। इनडाइजेशन, एसिडिटी, इनडाइजेशन, पचता नहीं है, हजम नहीं होती कोई चीज ठीक से, वो ठीक हो। रात को नींद नहीं आती, इफ यू आर नॉट फीलिंग, इफ यू आर फीलिंग इंसोम्निया और इफ यू हैव इंसोम्निया, आप सो नहीं पाते, अनरेस्ट फील होता है, माइंड फ्लक्चुएट करता है, बार बार थॉट प्रोसेस आते हैं और अनरेस्ट, अच्छा नहीं लगता, so your thought process will come down. There are many benefits you can get, right? But you have to do a minimum of 8 rounds. ऐसे 8 राउंड आपको मिनिमम करने पड़ेंगे। Always give a gap between 2 rounds. 2 राउंड के बीच में गैप देना है। सांसों को सामान्य करें, catch your breath, get it to normal, only then attempt the next round. सांसों को सामान्य करके फिर अगला राउंड करेंगे। 8 राउंड मिनिमम, मैक्सिमम 16 राउंड्स, 16 राउंड से ज्यादा ना करें, बहुत तेजी से चेंज होगा शरीर के अंदर, आपको झेला नहीं जाएगा, हजम नहीं होगा। सो नॉट मोर देन 16 राउंड्स, नॉट लेस देन 8 राउंड्स, 8 राउंड से कम नहीं, 16 से ज्यादा नहीं। ऑलवेज गिव अ गैप बिटवीन 2 राउंड्स।
एक बार अपने आप करते हैं, आप अपने आप कीजिए, काउंटिंग अपने आप करना, 8 और 12। आई एम टेलिंग यू द इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा, बता दे रहा हूं, यू डू इट ऑन योर ओन, अपने आप करेंगे। तो थोड़ा मुट्ठी बांध के पांव पे रखें, ओपन योर माउथ एंड इनहेल 3 टाइम, 3 बारी सांस खींचना है, 3 बारी, इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एंड बेंड योर हेड अ लिटिल डाउन, मुंह बंद करके सिर को नीचे झुका के प्रेशर डालो नीचे, काउंट 8, 8 गिनती करो। नो, प्रेग्नेंट लेडी शुड नॉट डू दिस, प्रेग्नेंट लेडी नहीं करेंगी, उनको दूसरा मेथड हम दे सकते हैं अलग से। देन एक्सेल स्टार्ट करना, एक्सेलेशन 12 गिनती में एक्सेल करना, मेकिंग अ साउंड, थोड़ा प्रेशर डालते हुए, जोर लगाते हैं तो साउंड निकलना चाहिए। 12 गिनती में एक्सेल करें, 12 काउंट एक्सेलेशन फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, नाक से एक्सेल करना। And then relax. देखिए, if there is a particular situation, जैसे प्रेगनेंसी है, उनको हम मेथड करा सकते हैं, बट वी विल हैव टू कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशन के हिसाब से कस्टमाइज। इसलिए मैं कह रहा था दिस इज जस्ट अ टेस्टर, जो कि मतलब कॉमन जैसे सिखा देते हैं। आइडियली इट शुड नॉट बी, ऐसे नहीं देना चाहिए किसी को। एवरीबडी हु इज इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, a process must be customized according to that person, right? तो अभी मैं रुकूंगा यहाँ पे, I'll stop here. आयुष will take you forward. आयुष आपको आगे बताएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच। तो काफी सारे लोगों के सवाल हैं कि कुंभक कैसे होगा, कैसे आप लोग ये सब करोगे एंड सो ऑन। सो विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड मोर। सो आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? प्लीज टाइप इन यस अगर स्क्रीन दिखाई दे रही है तो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑनलाइन प्रोग्राम। आपको कहीं कोई शिविर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल मूवमेंट करना नहीं है। आप जहाँ पे जैसे बैठे हैं, जैसे शशिकांत जी बैठे हैं कुर्सी पे, उसी तरह से कुर्सी पे आराम से बैठे रहना है, चाहे पलंग पे, चाहे कुर्सी पे, जहाँ पे भी हो, wherever you are sitting, you can do it from there. It's a completely online program, and yes, we are talking about complete reversal of all your chronic conditions emanating from diabetes and even more. अब रिवर्सल जब हम बोलते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रिवर्सल? हम डाइट के प्रोग्राम जैसा कुछ आपको प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। द मोमेंट यू लीव कुंभक थेरेपी और यू आर फोर्स्ड टू लीव कुंभक थेरेपी, प्रॉब्लम कम्स बैक। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वी आर टॉकिंग अबाउट आपके मेडिसिन जीरो होनी चाहिए, आपके सारे सिम्टम्स जीरो होने चाहिए। सिम्टम इंपॉर्टेंट है सर, शुगर लेवल इज नॉट द ओनली थिंग विच इज डायबिटीज। आपको कुंभक थेरेपी पे प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी भी नहीं रहनी चाहिए। Now, in this entire practice, you are not required to do any exercise, any hand-leg movement, no diet, no medicine, not even Ayurveda. Yes, we give you a lot of lifestyle guidance and support for your complete recovery. पूरा जो प्रोग्राम है वो मेनली 3 महीने का है, बट इट्स मोर ऑफ अ मेंबरशिप रादर देन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम की बजाय मेंबरशिप की तरह से, जब तक आपकी वो 3 कंडीशंस मीट नहीं हो जाती, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कोई पूरी तरीके से कुछ भी एलिमेंट हो, दैट्स इम्पॉसिबल। तो वो 3 महीने में हर तरह से सही हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा फुल्ली, बट देयर वुड बी अ मैसिव रिकवरी। विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। 3 महीने का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है और उसके बाद भी आपको सपोर्ट रहता है जब तक रिकवरी कंप्लीट ना हो। सो ऑल ऑफ दिस आपको करना क्या है, वो डिसाइड होगा बेसिस योर डायग्नोसिस, और उस हिसाब से आपका कस्टमाइज्ड मॉड्यूल बनता है। So the entire program is divided into 4 phases. 4 phases में प्रोग्राम है। पहला लर्निंग, फिर प्रैक्टिसिंग, फिर आपकी रिकवरी, और बाद में एक्सटेंडेड सपोर्ट अगर जरूरत पड़े तो। So this is how the structure is. 15 दिन की टोटल क्लासेस होती है, 15 दिन सुबह शाम अलग अलग। 3 महीने के दौरान 15 दिन क्लासेस होंगी। So the first phase लर्निंग फेज, उसमें 3 हफ्तों में यानी 20 दिन में आपके 3 मेन लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं जो स्वामी जी लेते हैं। सुबह 7 बजे ये मॉड्यूल्स होंगे, 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस अलग होते हैं सुबह शाम की। सो दैट इज आल्सो देयर। सो द फर्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट बेसिक कुंभक मॉड्यूल टू अक्लेमेटाइज, बॉडी को आदत डालने के लिए कुंभक की। सेकंड इज एडवांस्ड टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर कस्टमाइजेशन, और तीसरा कस्टमाइजेशन यानी आपकी डायग्नोसिस की बेसिस पे आपने क्या करना है वो सब बताने के लिए। नाउ आफ्टर द फर्स्ट सेशन इज ओवर, यू गेट अ प्राण शक्ति डायग्नोसिस फॉर्म ऑन गूगल
कैसे होगा? कोई ब्लड टेस्ट नहीं कराना, कहीं कुछ नहीं जाना, कोई एडिशनल खर्चा नहीं, कुछ नहीं. You just fill in a form and through your lifestyle indication you make certain observations और उसकी basis पे आप indicate करते हैं अपने form में, and we understand आपके कौन कौन से factors कमजोर हुए हैं. We also give you a practice, कुंभक practice to do, जिससे हमें प्राण शक्ति पता चलती है आपके functional factors की. Basis that of the 12.5 lakh practices which are there in कुंभक, आपके लिए प्रैक्टिसेस बनाई जाती हैं और सिखलाई जाती हैं. देन देयर इज अ 40-day पोस्ट लर्निंग फेज. देयर इज अ कस्टमाइजेशन मंडला सेशन फॉर प्रैक्टिसिंग, ताकि आप डिसिप्लिन में आ सकें. तो उसमें काफी सारी क्लासेस होती हैं. देन इन द थर्ड मंथ you track your levels, you track your sugar readings, आप symptoms कैसे समझें, step by step medicine से कैसे बाहर आए, उन सारी चीजों के लिए there are bunch of practice sessions and level tracking sessions, educational purpose से. So that happens in the third month. Then after that there is an extended phase. 13 हफ्तों के बाद लगातार हर महीने आपके लिए सपोर्ट के लिए सेशंस रहते हैं. ये सारा कुछ एक ही चीज में. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? प्लीज शेयर योर फोन नंबर्स इफ यू आर इंटरेस्टेड. आप अगर इंटरेस्टेड हैं, आपके मन में कोई सवाल है, तो प्लीज हमें फोन नंबर्स शेयर करें. सो वील आल्सो थ्रो आउट अ पोल ओपन टू यू गाइज. अब इन सारी चीजों में आप कैसे सही से कर पाएंगे? दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन अ लॉट ऑफ यू हैव. आपके साथ में मेंटर्स एसोसिएटेड होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स हु आर एसोसिएटेड विद यू, सो दैट ऑल योर क्वेरीज आर अप्रोप्रिएटली आंसर्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट स्प्लिट सेकंड. कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में आपको व्हाट्सएप पे, फोन कॉल पे, और जरूरत पड़े तो यू कैन गेट इन टच विद योर मेंटर्स एंड दे विल असिस्ट यू ओवर अ वीडियो डिस्कशन एज वेल. तो आप इंडिविजुअल सेशन में भी जा सकते हैं डिस्कशन की. नाउ हाउ इज द क्लास? अ टिपिकल क्लास इज लाइक दिस, बट मच डिफरेंट ऑफ कोर्स. वो इंटरेक्टिव रहती है. So, आपके टीचर आपको सिखा रहे होंगे and you would be live practicing those kriyas, performing those kriyas, and through chat all the Kumbhak therapists would be observing and correcting you on the chat. आप वहीं पे correction मिलेगा, वहीं पे आप सीखोगे. You can be sitting on a chair on bed, doesn't really matter. सही तरीके से कर पाए, हर रोज कर पाए, क्योंकि practices रोज करनी है. तो उसके लिए you do get a session recording, एक login बनता है which is there with you for your entire lifetime. सेशन रिकॉर्डिंग मिलती है, पीडीएफ में इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो उसको रेफर करके आप सही तरीके से कर पाते हो. ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू लर्न दिस एज अ 30-minute मॉड्यूल, 20 minutes इन द मॉर्निंग एंड 10 minutes इन द इवनिंग. इससे अधिक कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं, बस इतना ही करना है. एफिकेसी रेट. अब इसके रिजल्ट्स क्या हैं? आपने बहुत सारे लोगों के, अगर कुछ कंपटीशन है, कंपटीशन तो नहीं कहना चाहिए, कुछ और लोग हैं जो कि डायबिटीज के लिए मैनेजमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं. दे माइट कॉल इट रिकवरी और व्हाटएवर, बट अल्टीमेटली इट्स अ डाइट ओरिएंटेड प्रोग्राम. सो वी हैव लर्नड कि डाइट ओरिएंटेड प्रोग्राम कुड लीड यू वेयर अ टेम्पररी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट क्योर. 78% of people have been able to come out of diabetes, which is an extremely, किसी और methodology से the exact number is zero, exact zero. 25% medicines completely gone. Additional 29% medicines reduced by more than half. Additional 24% symptoms have reduced, but the doctors are controlling their medication. So this has happened within a 3-month period. बहुत सारे लोग हैं, विक्टर बिशॉप, इनमें से कुछ लोगों के आप लोगों ने देखे थे टेस्टिमोनियल्स. We'll share the testimonials in your respective WhatsApp groups. So many people have been able to come out of medicine and they have remained out of medicine for a very long period. कई लोग दोबारा वापस आ गया तो क्या, ये क्या, कुछ नहीं. आपके पास में आपकी प्रैक्टिसेस है, नेचुरल तरीका है. इन केस आफ्टर 4 years, 5 years, 10 years डाउन द लाइन, क्योंकि 1-1.5 साल 2 साल में तो वापस आते हमने देखा नहीं. अगर 4 साल 10 साल 20 साल बाद आपको दोबारा से प्रॉब्लम सिम्टम्स आते हैं, यू नो व्हाट यू नीड टू डू. आपके पास में सारी प्रैक्टिसेस हैं. यू डोंट इवन हैव टू कम बैक टू अस. प्रैक्टिसेस करिए, दोबारा बाहर निकलिए. यू नो हाउ टू. देयर आर पीपल विद डायबिटीज एंड विद बीपी एंड हार्ट इश्यूज, कर सकते हैं. एस्थमा कर सकते हैं. एलर्जीज कर सकते हैं. लंग्स का प्रॉब्लम, ब्रीदिंग का इश्यू, बिल्कुल कर सकते हैं. यू स्लोली बिल्ड योर स्ट्रेंथ एंड यू डोंट हैव टू एक्सरसाइज अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट फ्रॉम द वर्ड गो. तुरंत इतना प्रेशर नहीं लेना है अपने ऊपर. आपने सब लोगों को देखा, कुछ लोगों की 2 या 3 हफ्ते में ही लेवल्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, नॉर्मल लेवल के अंदर आ जाते हैं. बीपी का आराम सबसे पहले मिलता है और सबसे ज्यादा मिलता है. तो बीपी के पेशेंट को तो घबराने की जरूरत है नहीं. दिस इज नॉट कुंभक प्राणायाम.
प्राणायाम को मना किया जाता है, दिस इज नॉट प्राणायाम। इंसुलिन की डिपेंडेंसी है, काफी सारे लोगों के एग्जांपल्स है, बहुत लोगों के, मोर देन 1500-1600 पीपल हैव पार्टिसिपेटेड, तो बहुत लोग हैं। इसके अलावा बहुत कम समय में भी आराम मिला हो, ऐसे भी बहुत एग्जांपल्स हैं, 2 वीक, 3 वीक, 1 वीक, all of those examples are there. Now the cost of the program is 7,500 rupees for an entire membership, not one second month. You don't have to pay anything, nobody has to pay anything. सारे ही तरीके हैं आपके पास में पेमेंट करने के। I'll hold the screen for a little bit. मैं आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। The program is beginning on 1st of September, 1 तारीख को सुबह 7 बजे वेडनेसडे को। तो इस तरह से प्रोग्राम ये शुरू हो रहा है। I'll open up for questions. I'll allow you to unmute yourself. आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से क्लासेस होती हैं। कस्टमाइजेशन वेबसाइट आपको दिखेगी, वेबसाइट से आप ले सकते हैं। ऑल ऑफ दोस दैट इंफॉर्मेशन विल बी शॉर्टली शेयर्ड विद यू। कैन यू शेयर योर लिंक फॉर दिस मीटिंग टू माय फ्रेंड नाउ? या ऑफ कोर्स। बबलानी जी, आपको लिंक दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। आप में से कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। एक पोल मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। मेक श्योर दैट यू रिस्पॉन्ड टू दैट पोल फॉर श्योर। इस पोल पे जरूर रिस्पॉन्ड करिएगा। आप लोग अनम्यूट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। 4-5 लोगों ने, 6 लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। तो अतुल राउत, शंकर यादव, person with the name title Poco, anybody there, you can unmute and ask your question, please. Hello. Yeah, Rajnikant ji, please go ahead. Ranjit Kumar ji, please go ahead. Shankar Yadav ji, you can ask your question, please. Yeah sir, I am interested. बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं इसमें पॉजिटिव हूँ एकदम। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसमें सहमत। जी सर, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। कर दिया सर, मैं ऑलरेडी मैं बहुत देर हो गया। ठीक है सर, ग्रेट। उसके अलावा अतुल राव जी, यू हैव अ क्वेश्चन। जिनके सवाल हैं प्लीज हैंड रेज करते जाएं। शशिकांत, कपिल, संजय सक्सेना, any of you are there? विजय जी, प्लीज go ahead. विजय तकालकर जी, प्लीज सवाल। यस। ये एलर्जी के लिए कुछ कुंभक थेरेपी है आपके पास? हाँ, ये डायग्नोसिस की बेसिस पे कवर होती है सर। आपको डायबिटीज भी है साथ में? नो, एक्चुअली मुझे डायबिटीज है और मैं 3 मंथ से ये ज्वाइन किया है ये ग्रुप, बट एलर्जी के लिए कुछ है क्या, ये पूछना चाहता हूँ। सर, इसमें ही कवर्ड होती है। आपकी जब डायग्नोसिस होती है तो रूट कॉजेस की जांच करके ओवरऑल सिम्टम्स की बेसिस पे आपकी क्रियाएं डेवलप करी जाती हैं, प्रैक्टिसेस डेवलप करी जाती हैं। आप ग्रुप ज्वाइन करें। मैं ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन किया है। आप किसी बैच में हैं क्या ऑलरेडी? या 36 बैच में मैं। ठीक है सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत सुपर। आपको प्रैक्टिसेस सब ठीक तरह से समझ में आ पा रही है? यस। तो करना आसान है आपके लिए? हार्डली आई गॉट द रिजल्ट इन 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ में आई गॉट द रिजल्ट। सुपर ऑसम। आप अपने प्रैक्टिशनर्स के साथ में भी बात करें, वो आपको एलर्जी के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट एलर्जी भी आपकी निकल जाए। नहीं, एलर्जी तो मुझे, मेरे वाइफ को है, मुझे एलर्जी नहीं है। उसके लिए कुछ है क्या प्रोग्राम, ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, स्पेसिफिकली एलर्जी के लिए नहीं है। लेकिन अगर उनको और कोई प्रॉब्लम है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल एलर्जी के सर्दी 8-10 साल से सर्दी है कंटिन्यूस। आप अलग से मेंटर से बात कीजिए, हम आपको अलग से बता सकते हैं कुछ। ओके सर, थैंक यू। आप सर नंबर शेयर कर दीजिएगा और उसके आगे एलर्जी लिख दीजिएगा। यस, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, बोले। यस मैम, गो अहेड विद द नेम अतुल राउत, प्लीज गो अहेड। यस सर। प्रोग्राम सुबह 7 बजे है क्या? वो मॉर्निंग टाइम है क्या? मॉर्निंग 7। दूसरा शेड्यूल नहीं है क्या टाइम? मॉर्निंग 7 और शाम को 7 बजे 2 समय पे क्लासेस होती हैं। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है और मेंटर का सपोर्ट भी रहता है, तो आप किसी भी समय बातचीत करके अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हो। तो समय इतना फर्क नहीं पड़ता है मैम। क्या ना नहीं दिया। ठीक है मैम, ऑलराइट। आप ज्वाइन कर सकते हो मैम। आप अपना नंबर शेयर कर दो
आपको मेंटर्स गाइड करेंगे। आप प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। हाँ, शशिकांत जी, आपका कोई सवाल है? कपिल, मिस्टर राजेश कुमार। Yeah, sir, this is Rajesh. I have one question regarding this program. So you said reversal, right? So Yeah, what yeah. does reversal mean, sir? I mean, this will be permanent cure after 3 months, or I will be doing regularly lifelong something? नहीं What नहीं kind of? बिल्कुल नहीं। सुनिए, रिवर्सल का मैंने ये स्पेसिफिकली कवर किया था, ये मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। रिवर्सल का मतलब है ये 3 चीजें होनी चाहिए। आपकी मेडिसिन जानी चाहिए, आपके सिम्टम्स जाने चाहिए कंप्लीटली, आपकी कुंभक थेरेपी पे परमानेंट डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है रिवर्सल। और ये जो कुंभक थेरेपी है, ये हाउ लॉन्ग आई शुड बी डूइंग दिस, सर? As long as your body requires it. So basically, usually, if they are borderline cases and they are doing it in a disciplined manner, usually they take anywhere between 1.5 to 2 months. एक सर थे अभी जिन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। मुझे 7 ईयर हो गया अराउंड, सर। और फर्क नहीं पड़ता सर, शरीर की कॉम्प्लेक्सिटी और शरीर के रिस्पॉन्स रेट के ऊपर फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। Whereas on the other hand, there are people who take as much as 8-9 months, 10 months, even 12 months. Okay. तो ये इस समय अंतराल के बीच में कितना भी समय आपको लग सकता है, जितना भी लगेगा। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, ये 12 महीने हमारे साथ रहेगा क्या? 12 महीने नहीं, जब तक चाहिए वो रहेगा। वही देखिए, वीक 13 ऑनवर्ड्स मंथली सेशंस होते हैं, आप ग्रुप में जुड़े रहते हैं, मेंटल सपोर्ट आप लोगों के पास में रहता है थ्रू एंड थ्रू आउट। तो आपने सर बहुत बड़ी बात बोली कि ना तो इसमें डाइट आप सजेस्ट करोगे, ना आप एक्सरसाइज के लिए बोलोगे, ना आप इसमें, तो उसके बावजूद भी ये परमानेंट रिवर्स हो जाएगा, तो ये तो करिश्मा हो जाएगा सर। सर करिश्मा कई लोग कर रहे हैं। तो yes, I am there. तो एक एग्जांपल आपके सामने ही है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सर हो ही रहा है। करिश्मा आप अपने आप को वंचित ना रखें। करिश्मा नहीं चाहिए क्या? क्योंकि हम केवल वो ऑर्गन पे काम कर रहे हैं। आपको पूरा बताया, आप दोबारा से ये वेबिनार देखें कि हम ये कैसे करते हैं, तब आपको पता चलेगा। करिश्मा ना दिमाग की बात है। अगर आप सही चीज करें ना, तो सही चीज होती है। सर करिश्मा हम उस चीज को कहते हैं जिस चीज के बारे में हमें बताया गया है कि वो मुश्किल है या इम्पॉसिबल है या जो भी है एटसेट्रा। लंगड़े लोग हिमालय चढ़ जाते हैं और कई बार चढ़ते हैं, करिश्मा ही है, कर पाते हैं। नहीं सर, जो मिथ है शुगर के बारे में या डायबिटिक के बारे में, वो लोग एलोपैथिक वाले तो केवल मैनेज के बारे में बोलते हैं कि ये मैनेज हो सकती है, रिवर्स नहीं हो सकती। तो ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ये रिवर्स भी हो सकती है, वो भी बिना किसी डाइट के, बिना किसी रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए, एलोपैथी वाले दवाई के बारे में जानते हैं, तो वो एक्चुअली सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, मगर सेंटेंस पूरा कीजिए। ये दवाई से रिवर्स नहीं हो सकती। आप इसे सेंटेंस को पूरा करें ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये रिवर्स नहीं हो सकती दवाइयों से, ऐसा बोलना चाहिए, पर ऐसा वो आगे का वर्ड नहीं बोलते। अच्छा, मैं सर वो थोड़ा सा अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन मान लो रिवर्स नहीं होती है आपके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद भी, तो कोई मनी बैक गारंटी वगैरह है सर इसमें? आप डॉक्टर से मांगते हैं मनी बैक गारंटी? नहीं सर, नहीं। लेकिन वो तो बोलते भी नहीं है ना सर। नहीं, वो बोलते हैं, वो बोलते नहीं है, तो इसका मतलब मैनेज करने के बोलते हैं। वो चालूपंथी कर रहे हैं, बोलते नहीं है, तो वो आप तो बिना बगैर किसी रिजल्ट के पैसा दे रहे हो फिर तो। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, वो तो अलग बात है सर। बट आई एम जस्ट आस्किंग। राजेश जी, आपके सवाल का जवाब ये है। विजय जी, आप कहना चाहेंगे? यस, मैं विजय टाकल का औरंगाबाद से हूँ, महाराष्ट्र से। मुझे भी पैसा ऐसा ही लगा कि ये कुछ फ्रॉड रहेगा, ऐसा ही लगा। रियली बोल रहा हूँ मैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं ये भी बोला कि आपको ऐसा फ्री करना चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट। फ्री का कुछ मतलब नहीं होता है, उसको कुछ कीमत नहीं होता है अगर किसने फ्री किया तो। और मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं 6 जून से चालू किया, 36 बैच है मेरे बैच में, 120 मेंबर्स है, 99% मेंबर्स आर हैप्पी, सो हैप्पी। एक बात मैं कहना चाहूंगा। यस जी, मैं कहना चाहूंगा सर, अगर ये प्रोग्राम फ्री में होगा ना, तो 20 सेशन में से हम 2 सेशन भी अटेंड नहीं करेंगे। जो फ्री में मिलता है ना, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। एक्चुअली सच बताऊं, आप अगर सच में देखें, फ्री में कुछ होता ही नहीं है। आप अगर गुरुद्वारे में लंगर खाने जाओगे ना, उसके लिए भी कोई पैसा देता है। फ्री में, मतलब इस दुनिया का ये नियम है, फ्री में कुछ होता नहीं है। दूसरा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंचना है ना,
तो एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो या तो कोई हमारे को पीछे से पैसा डाल दे तो हम तो फिर आगे से फ्री कर देंगे उसको, बट फिर भी वो एक एफर्ट लगेगा उसका। स्वामी जी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो भी फ्री है, वो भी बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट there are other companies who are providing the introductory session in 50 rupees और 100 rupees। वो केवल ये सब बताने के लिए 50 या 100 रुपए चार्ज करते हैं। तो आप लोगों का भी ये फ्री है, ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जो आपका चार्जेस है, रिवर्सल जो आपने वर्ड यूज किया ना सर, ये मान लो आप 1 लाख रुपए भी रखते तो भी बहुत कम अमाउंट है। एक फिरंगी के पास अगर ये फॉर्मूला आ जाए ना तो वो लाख क्या वो 5 लाख रुपए लेगा। सर हिंदुस्तानी के पास भी आ जाएगा तो वो लाख रुपए चार्ज कर सकता है। ये बड़े-बड़े हॉस्पिटल एक दूसरा तरीका है इसको देखने का कि जो आप ये वन टाइम चार्ज दे रहे हैं, जिसको भी जैसा भी लग रहा है। सर मेरा एक सवाल था। तो हकीकत ये है कि इससे आपके आने वाले समय में लाखों बचेंगे और लाखों लोगों के लाखों बच सकते हैं। तो ये तो अगर हम बोल रहे हैं डाइट प्लान नहीं है, सोचिए, सोच रहे हैं मेडिसिन नहीं है, सोचिए, तो ये तो इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकती है अपने हेल्थ के बारे में। मैं इससे डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का जो नेक्स्ट स्टेज है वो किडनी इश्यूज हैं, और एक बार आप उस सर्कल में पड़ जाते हो तो वहां सर पैसे का पानी की तरह जाता है और उसके बाद भी कोई क्योर नहीं है सर उसका। इसीलिए बहुत जरूरी है कि डायबिटिक वाले कुछ बहुत जल्दी करना शुरू करें इसके बारे में, अदरवाइज तो किडनी इश्यू आएगा ही। आप जितने मेडिसिन ले रहे हैं आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ते ही हैं, उससे कभी कम नहीं होते। कोई सोचेगा बाद में चल के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शुगर कंट्रोल करके क्योंकि मैं दवाइयां खा रहा हूँ, तो ऐसा केस नहीं है। ये मेडिकल रिसर्च ही कहती है कि आप जितनी दवाई खाएंगे उतने कॉम्प्लिकेशन में होते जाएंगे। तो इसीलिए आगे चल के कोई न्यूरोपैथी हो जाता है, इज देयर एनीथिंग टू रिवर्स न्यूरोपैथी? क्या रिवर्स कर सकते हैं न्यूरोपैथी को? मेडिकल साइंस में तो नहीं कर सकते, बट अगर आप कुंभक करेंगे तो पैरालिसिस तक रिवर्स होता है। हमारे पास में एक केस अभी आपको टेस्टिमोनियल दिखाया था, उनमें एक पैरालिटिक है पेशेंट, कुछ माइस्थीनिया ग्रेविस, ड्रॉप फुट, इस तरीके के लोग हैं जो कि उनको काफी हद तक ठीक हो जाता है, 98% तक ठीक हो जाता है, विच इज अ बिग थिंग। आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाएगी। लेकिन दवाई खाते रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन में आएंगे, फिर उससे निकलने में भी टाइम लग जाएगा। एक बार किडनी इश्यू आ गया, आप कहते हैं कुंभक से क्या किडनी इश्यू ठीक हो जाएगा? डिपेंड्स ऑन टाइम। एक बार किडनी इश्यू आ गया तो कितना टाइम लगेगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। मगर क्या है कि हमारे पास में अभी ऐसा कोई रेलेवेंट डेटा नहीं है कि हम बताएं कि भाई आपका 2 साल में ठीक हो जाए, इसलिए हम अभी इसके बारे में नहीं। हम कहते हैं कि रिवर्सल है, यू विल हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। डायबिटीज से भी अगर आप एक बात बताइए, आप बहुत कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड प्रेशर, ये वो, न्यूरोपैथी है, 2 साल के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इज दिस अ बैड डील? 7,500 रुपए क्या बैड डील है? नहीं, हमारे लिए पैसा नहीं है। दीज आर जस्ट पीनट। ये जो हम पैसा चार्ज कर रहे हैं ना, जस्ट टू कीप अ सस्टेन्ड काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट को सस्टेन करने, बढ़ाना है हमको। लेकिन कितना बेनिफिट होगा आपको ये सोचिए सर। मैं तो ये बोल रहा हूँ सर कि जिसका भी ये रिवर्स हो जाता है उसको मतलब 50,000 रुपए ऊपर से डोनेट कर देने चाहिए आपकी संस्था को सर। सर मेरा एक सवाल था। हाँ जी सर, कपिल जी बोले। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं 8-10 सालों से मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, और कितने तरीके हो सकते हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना और टीआईपी डाइट लेना। मैं बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ, थक चुका हूँ सर इन सब चीजों से भी। मेरा फास्टिंग लेवल हाई आता है और फास्टिंग लेवल से 70-50 ऐसा पीपी लेवल मेरा बढ़ जाता है। बाकी सिम्टम्स मुझे कुछ नहीं है। HbA1c भी मेरा कभी 6, कभी 6.5, कभी 7 ऐसा आता है। तो मुझे आपका प्रोग्राम ज्वाइन कर करके फायदा मिलेगा ऐसा मुझे उम्मीद है, और मैं जरूर ज्वाइन करना चाहूंगा आपसे। बस एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, मैं इन 8-10 सालों में मैंने वेट थोड़ा सा लॉस किया है और मसल मास मेरा कम हुआ है, हाथ का और पैर का। तो क्या मुझे इसमें फायदा होगा इससे? अच्छा, मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से एक बात बताता हूँ। ये जितने भी डायबिटिक केस है ना, जितने भी जिनको भी डायबिटीज है, वो भी आप सुने, आपको समझ में आएगा। जो भी लंबे समय तक डायबिटिक होगा ना, वो अपना मसल मास लूज करेगा ही करेगा। क्यों? इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। मैं एक दूसरा पक्ष दिखा रहा हूं आपको। इसे कहते हैं धातु विस्खलन। आपके शरीर में ना अलग अलग तरीके के टिश्यू होते हैं।
जब वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाए तो ऐसी कंडीशन को डायबिटीज कहते हैं। रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, इस तरीके से 7 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टिश्यू होते हैं आपके बॉडी के अंदर, और ये विस्खलन यानी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस तो होगा ही होगा, हर एक का मसल लॉस होगा ही होगा। अब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, अभी आपको करना क्या है? उसको रोकना है ना, उसको रोकना है ना। अभी इसमें क्या आपको मैंने प्रैक्टिस बताया? यू होल्ड। व्हाट इज कुंभक? रोकना। तो और तो वैसे आप तो रोक नहीं रहे किसी तरीके से, दवाई खा के थोड़ी रोक रहे हैं, फूड से भी आप रोक नहीं सकते, लेकिन इसको आप एक एफर्ट डाल रहे हैं ना रोकने का, कुंभक कर रहे हैं तो सीधा सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसी से होता है और किसी चीज से नहीं होगा। एंड आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ लॉजिक। अभी भी एक लॉजिक मैंने डाल दिया। जी जी स्वामी जी, मैं तो बिल्कुल ज्वाइन करूंगा जी, बिल्कुल। सर अगर कुंभक करते हैं तो शुगर लेवल जो लो हो जाता है, तो उससे क्या शुगर वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं होती? हाँ, शुगर वाले बंदे को लो तो और भी खतरनाक है जी, तो फिर लो तो और भी खतरनाक है। इसीलिए जो इंसुलिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं ना, उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात का। एक बात बताइए, क्या आपका शरीर आपको कभी भी मार सकता है? आपके शरीर का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऑर्गन क्या अपने आप को बिल्कुल मार सकता है, या आपको जिंदा रखने के लिए वो काम करता है? हमारा शरीर हमको जिंदा रखने के लिए काम करता है। कुंभक कहां से आया? बाहर से कोई दवाई दे रहे हैं आपको? बाहर से कोई आपका मुंह नाक बंद कर रहा है क्या? नहीं, ये आपके ही शरीर का एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म है, आपके ही शरीर का मैकेनिज्म है। कोई भी आपके शरीर का मैकेनिज्म आपको रिस्क में नहीं लेके जाता। ये जो डायबिटीज भी है ना, जो शुगर लेवल भी है ना, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। लेकिन आजकल हमने ना हर चीज को क्रिमिनल, बॉडी को ही क्रिमिनल बना दिया। तो ये देखिए, शुगर लेवल लो आएगा आपकी मेडिसिन से, आपके इंसुलिन से लो आएगा। और अगर सपोज करो आप कुंभक कर रहे हैं, तो ये आप ये भी इंश्योर करेगा कि इवन दो योर शुगर लेवल कम्स डाउन, यू रिमेन अलाइव। तो उस समय आपको एक चीज ध्यान करना है। क्या करना है? आपको मेडिसिन कम कर देना है, आपको थोड़ा शुगर अपने डाइट में इंक्लूड करना है। समझ में आई बात? तो वो मेडिसिन को आप छोड़ेंगे ना, तो आपका शरीर जो है वो प्रॉपर बैलेंस में आना शुरू कर देगा। ये लो लेके नहीं जाएगा। ये ऐसा दवाई की तरह मत सोचिए, साइकोलॉजी क्या कुंभक किया एकदम से पता चला शुगर खत्म ही, जीरो कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं। ये आपके शरीर का ही मैकेनिज्म है, तो ये कभी भी वो काम नहीं करेगा विच इज डेंजरस फॉर योर बॉडी। स्वामी जी, राजेश अगेन, ये बताओ स्वामी जी कि ये जो प्रोग्राम है ये कितने दिनों से चल रहा है? क्या इसका कोई बैच कंप्लीट हुआ है अभी तक? 40 बैच सर हो चुके हैं। ये तो आप शुरुआत में ही बताया हमने, ये 2 साल के आसपास हो गए जी, और उससे पहले भी काफी समय से चल रहा है इंडिविजुअल। उसमें से 78% लोगों को का रिवर्स हो गया होगा सर, राइट? तो आपके पास कुछ रेफरेंस नंबर होते हैं कि सर, जैसे सिटी वाइज, जैसे फरीदाबाद, दिल्ली के आसपास एनसीआर का कोई नंबर हो जिससे बात कर सके? अपना फोन नंबर शेयर करें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, कोई इश्यू नहीं, सब हो जाएगा। ठीक है सर। मैं औरंगाबाद से हूँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र। हेलो, हाँ जी बोलिए, बोलिए। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ, मुझे ये पूछना है, अगर हेरिडिटी हो तो भी ठीक हो सकता है क्या? आप पूछ रहे हैं क्या हम जेनेटिक्स को बदल सकते हैं? हाँ, एक्चुअल क्योंकि सवाल मेरे है। फादर को भी है, मेरे ब्रदर हाँ, को भी है, मतलब फैमिली में सबको है, तो ठीक हो जाएगा क्या? अच्छा, मेडिकल साइंस के हिसाब से हर ऑर्गन में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स हर एक ऑर्गन में होते हैं, पैनक्रियास में भी स्टेम सेल्स होते हैं। आप वो स्टेम सेल्स वहां बैठ के क्या कर रहे हैं? वो पैनक्रियास को रिजुविनेट करने के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको ट्रिगर मिलना चाहिए। वो ट्रिगर मिलना चाहिए। वो ट्रिगर आप बाहर से नहीं दे सकते, वो अंदर से आप दे सकते हैं। तो जो कुंभक है ये एपिजेनेटिक ट्रिगर है। अब मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोल रहा हूं, वो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो एपिजेनेटिक ट्रिगर है, इससे आप अपने जेनेटिक्स को 99% तक बदल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हेरिडिटी ठीक हो सकता है? हाँ, हम प्रेगनेंसी का प्रोग्राम करते हैं जहां हम इंश्योर करते हैं कि आपकी डिजीज आपके बच्चे को ट्रांसफर नहीं हो। हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका जेनेटिक्स चेंज हो जाए। 12 साल के अंदर आपका पूरा जेनेटिक्स चेंज हो सकता है 100% कुंभक से।
मगर कुंभक से होगा, आपको ट्रिगर देना पड़ेगा उस स्टेम सेल्स को और अपने अच्छा, तो दूसरा मुझे ये पूछना था, मॉर्निंग में 7 o'clock है, तो अगर सुबह अटेंड नहीं कर पाते किसी वजह से, तो कोई और टाइमिंग है या रिकॉर्डेड वाला भी अटेंड कर सकते हैं? देखिए अच्छा रहेगा अगर आप लाइव अटेंड करें, क्योंकि अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ तो थोड़ा टाइम निकालें। लेकिन अगर किसी बहुत ही इमरजेंसी की वजह से आप नहीं अटेंड कर पाते तो रिकॉर्डेड तो हमेशा ही रहेगा आपके पास में, पीडीएफ भी हमेशा रहेगा, प्रैक्टिस सेशंस भी आपको मिलेंगे जिसमें क्लियर कर सकते हैं डाउट्स। ये बहुत मल्टी टियर हमने सपोर्ट दिया हुआ है, कोई मिस नहीं कर सके इसको, ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वामी जी, इसके लिए क्या कोई आप पोर्टल दोगे या कैसे? 1 or 2 टाइम है, एवरीडे है या कैसे है? नहीं, हफ्ते में कम से कम एक क्लास और एक प्रैक्टिस सेशन आपको जरूर मिलेगा। मतलब आप अपनी तरफ से यही प्रोवाइड करेंगे कि हफ्ते में एक दिन क्लास और एक दिन प्रैक्टिस सेशन? हाँ जी। व्हाट्सएप से राजेश जी जुड़े रहते हैं सब लोग। व्हाट्सएप में एक कॉमन ग्रुप बनाया जाता है जिसमें करीबन 10-12 मेंटर्स होते हैं आप लोगों को गाइड असिस्ट करने के लिए। आप इंडिविजुअली भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल अगर वीडियो सेशन में जाना है या बातचीत करनी, फोन वगैरह वो सब रहता ही, तो वैसे कर सकते हैं। और ग्रुप में तो सपोर्ट रहता ही है। मेंटर्स बहुत सारे हैं तो आप, और क्लासेस भी बहुत, रिपीट सेशंस वगैरह, प्रैक्टिस सेशंस, ये सब होते ही रहते हैं। अच्छा सर, किसी को मतलब ये 2 पीस में पेमेंट करना हो तो ये कुछ ऑप्शन है सर? वो संभव नहीं है। आप तो 1 लाख रुपए देने वाले थे। नहीं, वो आपकी तरफ से हो सकता है, आप क्रेडिट कार्ड से पे करें और उसका इंस्टॉलमेंट बांध दें। अरे नहीं सर, उतना वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है सर कि कुछ प्रोग्राम में जोश में ज्वाइन कर लेता है आदमी, आगे कंटिन्यू नहीं रह पाते। नहीं तो आपको फायदा होगा तो आप क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे? तब तो डेफिनेटली करेंगे सर। बस तो फिर करेंगे आप पहले से ही आधा मन लेकर चलेंगे तो आधा ही फायदा होगा। नहीं, हम तो पूरा मन नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉमिसिंग सर प्रोग्राम्स हमने अटेंड किए हैं। एक हमारे विश्व स्वरूप हैं फरीदाबाद में, वो 72 घंटे में डायबिटीज रिवर्सल का वादा करते हैं सर। नहीं, वो खीरा खिलाते हैं ना सर। जवाब कुछ है, जवाब ही नहीं। देखिए, ये वेबिनार हमने क्यों किया, ताकि आपके लॉजिक को सूट करा सके। जी। आप आपसे लॉजिक से डिसाइड करेंगे जो हमने बोला वो लेजिटिमेट है, वो बात सही हो रही है कि नहीं हो रही, आप डिसाइड करें, इसलिए ये वेबिनार किया है। नहीं, बहुत सारे विचार आपके और उनके भी मिलते हैं सर। वो भी यही बोलते हैं कि जो चीज मान लो गाय का दूध या भैंस का दूध आदमी पीता है तो वो हमारे लिए नहीं बना है, वो एक्चुअली उनके लिए बना है, तो उसको हम पीते हैं, तो वो भी उस तरह से उनके कुछ लॉजिक्स होते हैं। हम तो भोजन की बात ही नहीं कर रहे। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे सर, विचार मिलते नहीं है, मतभेद है। कौशिक पटेल जी, हर सुबह 7 बजे ज्वाइन करना पड़ेगा ना? नहीं, हर सुबह नहीं है सर, क्लासेस अलग अलग तरह से। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, 1 सेकंड दें मुझे। हाँ, ये इस तरह से प्रोग्राम का शेड्यूल रहता है। हर हफ्ते का शेड्यूल आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा, तो वो क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह बनती हैं एक्सेट्रा, वो आप देखते रहिए। और बाकी व्हाट्सएप में जुड़े रहते हैं, मेंटर्स से जुड़े रहते हैं। तो प्रैक्टिस डेली करना है पड़ेगा? प्रैक्टिस डेली करनी है। और मेरा योगा और एक्सरसाइज चल रहा है, वो भी साथ में किया तो चलेगा? वो आपको बताया जाएगा कि आपको सीक्वेंस क्या रखनी है, ताकि आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनका भी ज्यादा लाभ उठा सकें और कुंभक का भी। तो वो आपको सीक्वेंसिंग बताई जाएगी। ओके, थैंक यू। मिस्टर कौशिक पटेल has been trying to ask. एक मिनट, कौशिक पटेल जी काफी समय से कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। वो रेड माइक का बटन। हाँ, वो किया ना। हाँ बोलिए, अब फिर कर दिया। दोबारा उसको आप अनम्यूट कीजिए। आपने अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लिया अपने आप को। हाँ जी, हो गया। फिर कर दिया आपने। 2 बार नहीं करना है, 1 बार करना है। हो गया ना? आप सही है, आप कुछ मत करिएगा। आप अपना सवाल। ठीक है। अच्छा, 2 साल से मुझे मंदाग्नि है, मीन्स के एमीबियासिस हो जाता है, मरड़ा बोलता है ना उसको। तो और जो खाता है वो भोजन पचता नहीं है। और 10-12 साल से डायबिटीज था, लेकिन 2 साल मैं दवाई वगैरह कुछ लिया नहीं। मैंने जो अपना विश्वरूप चौधरी का जो डाइट प्लांट वगैरह किया था, तो मेरी डायबिटीज चली गई थी। लेकिन लास्ट ईयर मुझे कोविड आ गया। कोविड आने के बाद फिर मुझे डायबिटीज आ गई।
फिर मैं टेबलेट ले रहा हूँ। तो एक तो मंदाग्नि है, गैस है, उर्दू गैस जो ऊपर आ जाता है, मगज में ऐसा चक्कर चक्कर सा आ जाता है, बराबर है। मंदाग्नि है, पचता नहीं है। मंदाग्नि का इलाज क्या है बताइए? अभी तो मैं आयुर्वेदिक दवा चालू किया है। हाँ, तो मंदाग्नि खत्म हो गई। मंदाग्नि सही हो गया। खाना खाता है, पचता नहीं और गैस बन जाता है, गैस हाँ, ऊपर चढ़ता है। दवाई खाने से थोड़ा हेल्प मिल सकता है, मगर मंदाग्नि बिल्कुल ठीक नहीं होती। अच्छा। वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का कैपेसिटी है, एक तरीके से एफिशिएंसी है ना। जब वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो उसमें एक फैक्टर जो बाहर के तरीके से देखेंगे, हम कहेंगे गट माइक्रोबायोम ठीक नहीं है, या लिवर का फंक्शन अगर देखेंगे, वैसे यूजुअली इस बारे में बात नहीं करते हम, मगर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कई चीजों को मिला के बनता है। उसमें पैनक्रियाज एक पार्ट है, बाइल दूसरा पार्ट है, लिवर तीसरा पार्ट है, इंटेस्टाइन चौथा पार्ट है, गट माइक्रोबायोम पांचवा पार्ट है, फिर उसके बाद एंजाइम बैलेंस एक और चीज आ जाती है, हार्मोनल बैलेंस एक और चीज आ जाती है इसके ऊपर। ऐसे 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 देखेंगे तो एक्चुअल क्रक्स पे नहीं आ पाएंगे। आप देखें कि डाइजेशन वीक है, उसकी शक्ति कमजोर है। हाँ, डाइजेशन, हाँ, आपकी उसकी डाइजेस्टिव पावर या शक्ति कमजोर है। तो एक एग्जांपल मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर आपने वॉच नहीं किया, पूरा वेबिनार नहीं देखा तो दोबारा देखिए। मैंने कहा था अगर आप सांस रोक के बाहर की तरफ ट्रिगर नहीं देंगे, थोड़ी देर में होगा क्या, पसीना आने लग जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी शरीर की, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा। तो गर्मी शरीर में कब बढ़ती है? गर्मी शरीर की गर्मी, और जिसे हम कहते हैं जठर अग्नि, ओवरऑल हम कहते हैं इसको गार्हे पत्ते अग्नि, ये दोनों आपस में दोनों रिलेटेड है। और ये चीज उम्र के साथ भी कम होती है। आप एक जवान बच्चे को छू के देखें, एक बूढ़े को छू के देखें, दोनों में क्या फर्क होगा? एक बूढ़ा ठंडा होगा, एक जवान बच्चा गर्म होगा। हम कहते हैं ना गर्म खून है। तो ये मेटाबॉलिज्म तो डाउन हो रहा है, ये जठराग्नि तो डाउन हो रही है। तो जठराग्नि अगर डाउन जाती है, आप कुछ भी लोगे वो हजम तो होगा ही नहीं, बल्कि दवाई आपके लिए और भी अभिशाप है। नॉर्मल भोजन हजम नहीं हो रहा, दवाई हजम होने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है कि उस जठराग्नि को बढ़ाया जाए। और उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं? बाहर से तो कोई आग नहीं लगा सकते, अंदर ही आग क्रिएट कर सकते हैं, वो तो है तो आपके अंदर ही। तो कुंभक से हम जठराग्नि को, मेटाबॉलिज्म को, जिसे हम आमतौर पे आजकल इस शब्द से ज्यादा समझने लग गए, उसको बढ़ाते हैं हम। इस प्रोग्राम का मकसद एक वो ही है। तो आपकी जठराग्नि बढ़ेगी, आपकी डाइजेशन पावर अच्छी होगी, डाइजेशन से रिलेटेड डिफिकल्टीज जो होंगी, किसी को गैस बनता है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये सारे चले जाते हैं, है ना। तो आपके लिए तो और फायदा होगा, आगे चल के आप अच्छा खा पाएंगे, जो चाहते थे लाइफ में, जो जो चीजें खाना, है ना। हम ये नहीं कहते कि आप खाने को कंट्रोल करें, हम ये कहते हैं आप अपने डाइजेशन को ठीक कर दें, फिर आप पत्थर भी खाओ ना, हजम होना चाहिए। राइट, एक्चुअल तो बात यही है ना, काम तो असल वही है ना, कि डाइजेशन ऐसा बढ़ाओ कि पत्थर भी खाओ तो भी पच जाए। अभी तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं हजम हो रहा। हाँ, चावल भी नहीं पच रहा है। हाँ, ठीक है ना। तो वो इसी से, वो इस प्रोग्राम का मकसद है। राइट। आप लोग कंट्रोल में आने के बाद स्वीट खा सकते हैं ना? हाँ, स्वीट खा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब हजम करने की क्षमता, आपकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाए तो कुछ भी खाओ। जब नहीं बढ़े तो फिर आप खाने की कोशिश करोगे तो ही तो प्रॉब्लम आती है। नहीं, डायबिटीज कंट्रोल में सब आ गया, नॉर्मल आ गया, तो उसके बाद नहीं, हाँ, जब आपका नहीं डायबिटीज कंट्रोल, अभी आप समझते ना शुगर लेवल कंट्रोल हो गया, उससे नहीं होगा। स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए, शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए शरीर की, आपको अच्छा फील होने लग जाए, सिम्टम चले जाए, उसके बाद कुछ भी खाओ तो ठीक है। अच्छा, तो मैं अभी दूसरी तो दवाई लेता नहीं, मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ। हेलो, अभी आप आयुर्वेदिक दवाई लेते जाएं और स्ट्रेंथ बिल्ड करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, और आपको खुद पता चल जाएगा एक टाइम के बाद में कि आपको बहुत आराम हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपके साथ भी ज्वाइंट करना चाहता हूँ। मीन्स के मैं अभी मेरी जो प्रक्रिया चालू है, मीन्स के मैं चालू रखो ना, वही मैं बता रहा हूँ, उसको अभी चालू रखो। अच्छा, उसको चालू रखो और आपका भी साथ में ज्वाइन करूँ। हाँ, फिर धीरे धीरे करके उसको ड्रॉप कर।
अच्छा, धीरे धीरे उसको छोड़ दूं। अभी मैं सुबह सुबह मकाई का रोटी खाता हूँ और दोपहर को एक ड्रैगन फ्रूट लेता हूँ और 5 बजे दाड़म का पानी लेता हूँ 1 गिलास, बस उतना पूरा दिन का डाइट है। ये ड्रैगन फ्रूट कौन ड्रैगन छोड़ के गया था हमारे यहाँ? नहीं, वो उन्होंने बताया है तो वो हिसाब से हमारे देश का नहीं है फल ये। अगर हमारे देश का फल नहीं है तो इसने आपके शरीर को बनने में मदद नहीं किया, ये वातावरण में इंक्लूड नहीं होता, तो हमारे लिए अनसूटेबल हो जाएगा। आप क्लास में आएंगे तो हम आपको बताएंगे। चलिए छोड़िए। चलो ऑफ कोर्स आऊंगा, जरूर आऊंगा। ठीक है। डॉक्टर संतोष कुमार, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। तो आपको कांटेक्ट के लिए नंबर शेयर किए गए हैं नीचे, उसमें चैट बॉक्स में देखिए। आप अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं। मेरा नंबर दिया हुआ है अभी। ठीक है, फिर तो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो हूँ, हाँ, जरा थोड़ा सा औरों को मौका देंगे सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ, ये संतोष। हेलो। हाँ, बोलिए सर। हेलो। अनम्यूट कीजिए संतोष कुमार जी, अनम्यूट क्लियर। या सर, आवाज जा रही है मेरी सर? हाँ, फर्स्ट क्लास, लाउड एंड क्लियर, बोलिए। सर, मुझे जानना है ये कि मैं प्री डायबिटिक में लगभग आ चुका हूँ। मेरा फास्टिंग शुगर जो है ना 115 120 रह रहा है सर, और आफ्टर मील 130 135 रहता है सर। तो क्या सर ये रिवर्सल कुंभक थेरेपी में पहली बात तो जरूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं प्री डायबिटिक, ये डायबिटीज है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। आपके पैनक्रियास बिल्कुल ठीक होगा। अभी क्या हो रहा है आपको, आप घबरा रहे हैं। सुबह का जो नंबर हाई होता है ना, उसमें एंजाइटी जिनको भी है होती है, जो थोड़ा घबरा जाते हैं जल्दी, या जिनका थोड़ा नर्वस सिस्टम थोड़ा ऑन अ वीकर साइड होता है ना, या किसी सिचुएशन की वजह से भी कोई घबरा जाते हैं, तो उस वजह से होता है। जरूरी नहीं कि डायबिटीज है। सर, मेरा बीपी भी फ्लक्चुएट अभी करने लगा है सर। हाँ, वो भी उसी वजह से है। एड्रिनल फटीग हो रहा है आपको क्या हो रहा है? एड्रिनल फटीग कहते हैं। मगर आप इस प्रोग्राम में आएंगे ना, तो हम उसके लिए आपको कस्टमाइजेशन करेंगे, फिर आगे चल के आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर में नहीं आएंगे। सर, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास चलेगा या अलग से कोई? आपको जैसे ये वेबिनार चल रहा है, जूम पे क्लास चलता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है। व्हाट्सएप ग्रुप तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो जाएगा। जी, तो पेमेंट कैसे करेंगे सर इसमें, इस ग्रुप में? पेमेंट का क्या जरिया है? पेमेंट देखिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो उसमें पेमेंट लिंक शेयर किया गया होगा, और इधर चैट में व्हाट्सएप ग्रुप में सर नहीं जुड़े हुए, नंबर हम भेजे हैं सर अभी। अच्छा, नंबर आप डाल दीजिए तो लोग आपसे बात करके आपको सहायता कर देंगे आपके कैसे ज्वाइन करना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सप्ताह में एक दिन क्लास होगा या रेगुलर क्लास होगा सर? एक मेन क्लास होगा, एक प्रैक्टिस क्लास होगा, बाकी दिन आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके सर, बहुत अच्छा लगा सर क्लास। मन में शक्ति आ गई सर कि चलो कुछ रिवर्सल हो जाएगा तो जिंदगी बदल जाएगी सर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए रिवर्स कीजिए और दूसरों को भी फिर मदद कीजिए। जी। आप लोगों ने जिन्होंने भी व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी लिंक शेयर किया गया है, व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है। उस पर क्लिक करेंगे। लिंक कहाँ भेजना है सर? चैट में लिंक दिया गया है सर। किसमें दिया है सर? चैट बॉक्स में। हाँ। संदीप केएल जी सर, मेरे एक प्रॉब्लम हो रही है सर इसमें। जो मेरे राइट पैर में ब्लड फ्लो रिड्यूस होकर रखा है, जैसे ब्लड प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसमें आपका ये थुम्बक में कुछ है क्या? थुम्बक में थेरेपी में क्या? राइट पाँव में, राइट पैर में? हाँ, राइट पैर में है, मतलब ब्लड रिड्यूस होकर रखा है, प्रॉपर सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो काफी पेन रहता है। मतलब सर्कुलेशन नहीं होता आपका प्रॉपर। हाँ, जैसे चल नहीं पाता हूँ ठीक से। हाँ, वो अब एक बात बताइए, आपके किचन का जो सिंक होता है ना, जहाँ बर्तन धोते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है अगर, तो आप क्या करते हैं उसे खोलने के लिए? बिल्कुल, उसको प्रेशर लगाते हैं। बिल्कुल प्रेशर लगाते हैं। जी सर। तो कुंभक में क्या आप प्रेशर लगाते हैं ना, तो उसी से खुलता है, और कोई तरीका नहीं है खुलने का उसका। जी। तो आपके हिसाब से इसको थोड़ा कस्टमाइज करेंगे ना, तो वो आपका खुल जाएगा, वो सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी, जैसे मैंने अभी आपको ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो ज्वाइन कर लिया है, और इसके लिए कैसे क्या होगा? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आप अपना नंबर छोड़ दें, फिर आपको हम गाइड कर देंगे कैसे पेमेंट करना है और कैसे ज्वाइन करना है, वो सब गाइड।
जी थैंक यू जी, धन्यवाद जी। आप सभी लोगों को मैं एक नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। ये नंबर पे आप चाहें तो अभी कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपके कोई सवाल हो, पेमेंट का कोई सवाल हो या किसी भी और चीज का, तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इनका जी काउंसलर का धन्यवाद नाम दीपक। जी धन्यवाद जी, भरत चौहान जी, आपका कोई सवाल था? और किसी के भी कोई अगर सवाल हो तो प्लीज वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मिस राशिदा, मिस्टर RS कुलकर्णी। पेमेंट 31 तारीख को कर सकते हैं क्या? सैलरी आएगी उसमें। वो आप चैट बॉक्स में एक बार नंबर डाल दें, ये आयुष। जी जी सर, ये तो वो फिर कांटेक्ट कर देंगे आपसे। हाँ, आप नंबर शेयर कर दीजिए, हम आपको गाइड करेंगे सर। ठीक है ठीक है। वैसे कल तक के लिए आपका जो पेमेंट है वो 7,500 है। उसके बाद में जो प्रोग्राम की पूरे की फीस है वो 8,000 रुपए है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये नंबर आपको शेयर किया गया है, प्लीज कांटेक्ट करें और पेमेंट की फॉर्मेलिटीज करें ताकि आप बेनिफिट पा सकें। अनीस रंगवाला, मिस्टर अनीस रंगवाला, you joined several times. If you have a question, other people, there is not much more to say. बहुत ज्यादा कुछ और डिस्कस करने के लिए या बताने के लिए हमारे पास में नहीं है, बट हाँ, आप लोगों के अगर कोई सवाल बचे हैं तो प्लीज जरूर पूछिए। बाकी आपके पास में फोन नंबर भी है हमें कांटेक्ट करने के लिए, आप अपने नंबर शेयर करेंगे तो हम भी उस पर कांटेक्ट कर पाएंगे। और काफी लोगों ने आप में से अभी भी पोल पे रेस्पॉन्स नहीं दिया है, तो ये जरूर इंश्योर करें कि पोल पे रेस्पॉन्ड कर दे ताकि हम आपको गाइड कर सकें उसी तरह। तो और कुछ फेसबुक में अगर सवाल आए हैं तो वो भी एक बार को देख लेते हैं। मेरे की को शेयर कीजिए। भरत चौहान जी, आपका अगर कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग द सेशन। और हमारे पास में ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है अभी, सिवाय आप लोगों के सवाल के जवाब देने के लिए। हाँ, गैलेक्सी J6, आप अपना नंबर शेयर करेंगे, आपको कॉल मिलेगा अभी। प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर और हैव शेयर्ड योर नंबर। दोबारा शेयर कर दें अगर नहीं किया हो तो। पोल पे जरूर रेस्पॉन्ड करें। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली कुंभक थेरेपी के लगभग 40 बैच हो चुके हैं, 39 बैचेस टू बी स्पेसिफिक। तो काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। यूजुअली एक बैच में, जैसे अभी सज्जन ने जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है 36 बैच में, वो भी आए थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो 100-125 के आसपास एक बैच में बंदे होते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन 3-4 हज़ार लोग शुरुआत में कम थे, तो उसी हिसाब से हम लोग बता रहे हैं करीब 1,500-2 हज़ार लोगों ने डायबिटीज के अलग अलग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। जो भी डिसिप्लिन से इन क्रियाओं को कर पाता है वो डायबिटीज से मुक्ति पा पाता है। सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें चमत्कार नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल सी चीज है, आपके शरीर के अंदर इश्यू है जिस वजह से आप कुछ चीजें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उसी कमजोरी को मजबूती में बदलना है। और शरीर के अंदर केवल एक वॉलंटरी एक्शन है जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी इच्छा शक्ति को एक पर्टिकुलर ऑर्गन या प्रोसेस की तरफ, और वो है हमारी सांसें। बस उसी को यूज किया जा रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और बस इतना है कि ये कोई जेनेरिक चीज नहीं है, ना ये योग है, ना ये प्राणायाम है, ना ये कंपैरेबल है किसी और चीज से। ये आपकी डायग्नोसिस के ऊपर बेस्ड है। हर इंसान का शरीर फर्क, हर इंसान की डायबिटीज की वजह फर्क। वो वजह क्या है वो ढूंढनी है और उस हिसाब से
जो लाखों क्रियाएं हैं कुंभक में, उस हिसाब से आपकी कुछ प्रैक्टिसेस होंगी, वही आपको सिखलाई जाती हैं ताकि आप प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज थी, आफ्टर बेबी भी है, क्या ठीक हो सकती है? हाँ, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमारा गर्भ संस्कार वाला प्रोग्राम होता है, अष्टांग गर्भ संस्कार, वो ज्वाइन करेंगे तो डायबिटीज और बाकी जो और भी जेनेटिक तो आप वीकनेस में है वो, जिससे आपके बच्चे को भी इम्पैक्ट आ सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो गर्भ संस्कार करके एक प्रोग्राम है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो अलग प्रोग्राम होता है, अष्टांग गर्भ संस्कार। आप अगर नंबर छोड़ दें उसके साथ में प्रेगनेंसी लिख दें तो वी कैन हेल्प यू, आपको हेल्प कर सकते हैं। जी मिस्टर लथामणि हरीश, he is not diabetic but he wants to increase his energy levels, so is the program the right choice? एनर्जी लेवल्स तो आपको जो सिखाया वही करो, बढ़ जाएगा। करके देखना आप, डू इट फॉर फ्यू डेज एंड सी, एक ही दिन करो एंड वॉच योर एनर्जी, लॉट ऑफ डिफरेंस, यू फील लॉट ऑफ डिफरेंस। एनर्जी तो ऐसी है जिसकी कि करते ही जिस दिन करोगे उस दिन एनर्जी लेवल चेंज होगा। काफी सारे लोग प्रिवेंटिव रीजंस की वजह से कुंभक के प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। इससे अगर आपको फंडामेंटल लेवल पे अपने आप को ठीक करना है, चाहे आपको डायबिटीज है चाहे नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफेक्ट है जिसकी वजह से अलग अलग प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो कस्टमाइजेशन जो है वही एक ऐसा टूल है जिससे हम कस्टमाइज करके आपके हिसाब से आपको मेथड्स दे सकेंगे और आप प्रोटेक्टेड रह सकेंगे। ये प्रिवेंटिव भी है, ये क्यूरेटिव भी है। जो क्यूरेटिव है तो प्रिवेंटिव ऑटोमेटिकली आता है। ऑलराइट, थैंक यू सर। विनय जी, आई थिंक आपके सवाल का जवाब मिला होगा। सर एक सवाल था सोरियासिस को लेकर, उनको सोरियासिस को लेके देखिए अलग से प्रोग्राम अभी नहीं है, लेकिन आप अगर इस प्रोग्राम में आते हैं, सोरियासिस है और आप इस प्रोग्राम में आते हैं, तो हम कस्टमाइज करेंगे सोरियासिस के लिए। दूसरी चीज, हम कुछ और ऐसी चीजें आपको सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आप सोरियासिस बिल्कुल ठीक हो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं, उनका कोई उपाय नहीं है, आप दूसरे तरीके से वो ठीक नहीं कर सकते। कुंभक इज अ वे वेयर यू कैन कम आउट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो कस्टमाइज करेंगे हम आपके लिए एंड विल सजेस्ट यू सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो टू कंप्लीटली कम आउट ऑफ। राइट, इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहेंगे हम लोग। आप लोगों में जिन्होंने अभी भी अपने नंबर शेयर नहीं किए हैं, मन में कोई सवाल कोई दुविधा अभी भी रहती है, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और आपको जो नंबर दिया गया है उस पर चाहें तो कॉल करें। और अरुण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और व्हाट्सएप के ग्रुप में ज़रूर मेक श्योर दैट यू हैव जॉइंड अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू हैव रेस्पॉन्डेड टू द पोल। तो पोल्स पे ज़रूर रेस्पॉन्ड करिएगा अगर अभी भी नहीं किया है तो। 1 तारीख से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अभी आप लोगों के पास कुछ एक दिन है सोचने के लिए, बट सोचने का रीज़न केवल तभी मिलता है जब आप किसी चीज़ से भाग रहे हैं। तो अब भागने का समय हो चुका है ख़त्म। जो जितना लॉजिक था, जितनी दलील थी, जितने सवाल थे, मेरे ख्याल से शांत हो चुके हैं, तभी सवाल आ नहीं रहे। और अगर सवाल नहीं है तो बस अब कदम उठाने की बात है और डायबिटीज से बाहर निकलने की बात है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और आपका इंतजार करेंगे एक बार। नमस्कार।